हमको सभी से दर्द है, गुरुदेव ये आशीष है जो सोचने का फर्ज है। हम पुजारी करेंगे गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, ऊंची झूठी आहती अन्याय की अभिमान की, सेवा करे हो दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोड़े ना हो हम बुद्धि से, तो विश्वमय से ईश्वर, हो राम में और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर ताव कर, हम वीर हो अति वीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रख गंभीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें कभी नहीं करके जुदा। इस अमर आत्मा हमें हर श्वास भर में गम रहे, डर मौत भी आए, सुख दुख हमसे कम रहे। Thank you. So today we have this last class on financial instruments, wherein the issues related to first time adoption of the Ind AS in relation to the financial instruments will be discussed, as well as since this first time adoption Ind AS will be discussed by the team, by the speakers, they will also discuss certain other exemptions related to property, plant and equipment and other item of balance sheet. And then they will discuss effects of changes in foreign exchange rates. So we have speakers Isha Sharma, Arushi and Sandesh. Good afternoon, everyone. I, Isha Sharma, along with Arushi and Sandesh, will be taking our today's Saturday class on the topic first-time adoption and effect of changes in FX rates. So before moving into this topic, can anybody of you here tell me which companies are required to follow Ind AS and what was the starting date when Ind AS became applicable? We have discussed it in our previous classes. लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी नेटवर्थ जिनकी 250 करोड़ से अबव और 500 करोड़ से बिलो और एप्लीकेबिलिटी डेट है 1 अप्रैल 2016। करेक्ट। और नहीं 500 करोड़ से बिलो मतलब 500 करोड़ के अबव अगर अनलिस्टेड कंपनीज का हो तो उसको इंड एस अडॉप्ट नहीं करना है। थिंक फ्रॉम लॉजिक इटसेल्फ। So anyway, she will explain. Okay. So, on or after 1st April 2015, there was a voluntary adoption that was permitted with 1-year comparatives to be given in the financial statement. Then, on or after 1st April 2016, phase 1 companies were included in this, in which companies whose net worth was 500 crores or more and the holding subsidiary, associate and joint venture companies of these above companies
were required to follow Ind AS. After that, on or after 1st April 2017, it became mandatory for those companies who were listed or the companies which were in the process of listing whose net worth was less than 500 crores. Secondly, unlisted companies having net worth of 250 crores but up to 500 crores were also included in this, followed by holding subsidiary associates and joint venture companies of the above. Also, there were certain exemptions from this application. Insurance companies were exempted from following Ind AS. Also, banking companies were also exempted. NBFC companies. Now, NBFC companies who were falling in phase 1 companies, that was companies whose net worth was 500 crores or more, were required to follow Ind AS on or after 1st April 2018. And the companies, NBFC companies who were falling under phase 2 companies were required to follow Ind AS on or after 1st April 2019. So let's start with Ind AS 101, that is first time adoption. So whenever an entity is required to follow an Ind AS as prescribed by the standard, the entity is required to comply with this accounting standard right from the inception of the entity and make necessary adjustments in the financial statement. Now, this may sometimes become impracticable, and even if it is practicable, it may cause enormous hardships on the part of the entity that will result into additional cost and effort on the part of the company that may not match with the benefits derived from such implementation. Now, for such cases, Ind AS 101 comes to rescue and provides certain mandatory exceptions and exemptions which are optional in order to follow these accounting standards. Now, one thing is to be noted that first-time adoption will be availed by any entity once and only once in the lifetime of the company. मतलब अगर कोई कंपनी कोई भी सारे इंडेक्स एक बार अडॉप्ट कर लेती है तो वो ये ऑप्शन बार बार अवेल नहीं कर सकती अगर उसने एक बार इंडेक्स अप्लाई कर लिया फिर उसको आगे आने वाले हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाई करनी ही पड़ेगी. हम आज की क्लास में discuss करेंगे the objective and scope of this index, followed by the steps in recognition and measurement. Then we'll discuss about certain exceptions and exemptions, which is the main topic of this index, and then concluding it with the presentation and disclosure requirements. Now, let's start with the objectives. Now, the objective of this index is to ensure that the first index financial statements and the first index interim financial report shall contain high quality information that is transparent for users and comparable. Secondly, it provides a suitable starting point and that is at a cost that does not exceed the benefits. Next, we'll discuss about the scope of this index. मतलब कहाँ कहाँ ये index apply होगा. So index 101 applies to first index financial statements and each interim financial report for the part of the period covered by its first index financial statements. मतलब जो भी कंपनी पहली बार इंडेक्स को अडॉप्ट करती है उसकी जो पहली बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे और साथ ही में जितनी भी इंटर फाइनेंशियल रिपोर्ट बनेगी सिर्फ उसी पे इंडेक्स 101 अप्लाई होगा. आगे आने वाले किसी पे भी इंडेक्स 101 अप्लाई ना होके बाकी जो एक्टिव इंडेक्स है उसके हिसाब से अकाउंटिंग होती है. इसकी एक एक्सेप्शन है कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज मेड बाय एन एंटिटी दैट ऑलरेडी अप्लाइड इंडेक्स. कोई ऑलरेडी इंडेक्स को फॉलो करिए अगर वो अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज करती है तो उसकी अकाउंटिंग अपन इंडेक्स 101 के हिसाब से नहीं करेंगे. उसकी अकाउंटिंग फिर इंडेक्स 8 के हिसाब से होती है which is accounting policies, change in estimates and errors. Now there are certain steps in recognition and measurement as per index. First step is the identification of the date of transition. Date of transition एक बहुत important date होती है जहाँ से अपन अपनी मेजर सारे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं वो डेट ऑफ ट्रांजिशन से देख पाते हैं. Second step will be the selection of accounting policies that comply with index. Third will be preparation of opening index balance sheet using optional exemptions and mandatory exceptions. Fourth will be preparation of index financial statements, concluding it with the presentation, reconciliation, and disclosures. Starting with the first is the date of transition. Date of transition को समझने से पहले अपन को ये पता लगाना पड़ेगा what is the first index reporting period called. So it is the latest reporting period covered by an entity's first index financial statement. मतलब जिस भी साल में एक एंटिटी पहली बार इंडेक्स लगाएगी उसको फर्स्ट इंडेक्स रिपोर्टिंग पीरियड बोला जाएगा. Date of transition is the beginning of the earliest period for which an entity presents full comparative information under Ind AS in its first index financial statement. आप सभी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देखे हैं कभी ना कभी. अपन करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के भी फिगर्स देते हैं. तो
डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या होती है? स्टार्टिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच कंपैरेटिव फिगर्स आर गिवन। तो अगर मैं 21-22 में पहली बार इंडेस अडॉप्ट करूंगी तो मेरा 20-21 का पहला दिन दैट इज 1 अप्रैल 2020 डेट ऑफ ट्रांजिशन हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। ए लिमिटेड इज अ बीएसई लिमिटेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ है 100 करोड़। तो मुझे बता सकता है ये फेज 1 कंपनी है या फेज 2 कंपनी है? फेज 2 करेक्ट। तो ए लिमिटेड को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने थे एज पर इंड एस दैट सपोज 1 अप्रैल 2022 से। तो इसमें अपन देखते हैं डेट ऑफ ट्रांजिशन और फर्स्ट इंड एस रिपोर्टिंग पीरियड क्या होगा। तो फर्स्ट इंड एस रिपोर्टिंग पीरियड तो बहुत आसान है, 1 2022 से होगा और डेट ऑफ ट्रांजिशन हो जाएगी करेक्ट। तो यही यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। कोई भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे 30/6/2022 को अब आज की डेट में फेज का कोई फर्क नहीं है। मोमेंट इट इज ए लिस्टेड कंपनी ऑन मेन स्टॉक एक्सचेंज, not on the SMEs, then it is required to comply with the index. तो जब भी कोई कंपनी अब इंडेस पहली बार अडॉप्ट करेगी तो मतलब वो 2022-23 की तो इंडेस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी 2021-22 के भी उसको इंडेस के हिसाब से बनाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेक दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल, जो अपन ने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। नेक्स्ट स्टेप इज द अकाउंटिंग पॉलिसी, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो कुछ नहीं होता, जो आज तक कंपनी गैप के हिसाब से जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हुए आ रही थी वही उसको इंडिया से फॉलो करना है। एक कंडीशन है बस कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो हर एक रिस्पेक्टिव इंडिया से कंप्लाई कर देनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रही तो उसका अपन को रिस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब entity uses the same accounting policies in its opening Ind AS balance sheet and through all the periods presented in its first Ind AS financial statements. जो वो पहले Ind AS balance sheet में यूज करेगी वही उसको आगे आने वाले सब में यूज करनी पड़ेगी। Those accounting policies shall comply with each Ind AS effective at the date of its first Ind AS reporting period. An entity may apply a new Ind AS that is not mandatory only if it permits early application. जो Ind AS उसमें नहीं लग रहा वो अप्लाई वो कर सकती है, पर उसकी एक ही कंडीशन है कि उसका अर्ली एप्लीकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव इंड एस में परमिट करा हुआ है। थर्ड है ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नीड्स टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदर देन द एक्सक्लूजन बाय ऑप्शनल एक्सेप्शंस एंड मैंडेटरी एक्सेप्शंस। जितने भी इंड एस लग रहे हैं वो उस कंपनी को रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे अप्लाई करते हुए चलना पड़ेगा। इसके कुछ एक्सेप्शन और एग्जेम्पशंस हैं जो अपन बाद में अभी डिस्कस करेंगे, पर रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट अगर वो एंटिटी उस चीज को फॉलो करती तो उसका क्या इफेक्ट होता है, तो उसको अपन को अकाउंट पर वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज है कि जो इफेक्ट ऑफ दिस जो इनका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का जो भी इफेक्ट होगा वो रिटेन अर्निंग से एडजस्ट करने पड़ेंगे इन डेज में जो ओपनिंग बैलेंस शीट में बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग इन डेज बैलेंस शीट। फर्स्ट इज द रिकॉग्नाइज ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज as required by Ind AS। जितनी भी Ind AS के हिसाब से असेट्स और लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज होनी चाहिए वो रिकॉग्नाइज करते हुए चलिए। अभी कौन आवाज कर रहा है? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई कैप के हिसाब से जो डिटेल की लायबिलिटी बनती है जो अपन देखते हैं अक्सर वो इनकम बेसिस पे बनती है। तो लेट्स सपोज कोई रिवैल्यूएशन होता है, अगर अपन कोई भी एसेट में लेट्स से पीपी में अपन ने कोई रिवैल्यूएशन करा तो उसको अपन रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करते हैं, ना कि अपन पीएनएल में रूट कराते हैं। तो मेरे आई गैप के हिसाब से तो डिटेल की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी रिवैल्यूएशन पे। लेकिन अगर मैं इंड एस की बात करूँ तो इंड एस में जो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो डिटेल की लायबिलिटी बनती है वो बैलेंस शीट आइटम्स के हिसाब से बनती है। तो इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व का इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम टैक्स रिवैल्यूएशन को डिसअलाउ कर देता है, वो नहीं मानता। लेकिन अपने जो कैरिंग अमाउंट होगी इंड एस की बैलेंस शीट में वो रिवैल्यूएशन के साथ खड़ी होगी। लेट्स से मेरा 500 करोड़ की कोई प्लांट थी, उसको मैंने रिवैल्यू करके 800 करोड़ कर दिया, तो अब मेरी इंड एस की बैलेंस शीट में वो 800 करोड़ पे खड़ा हुआ है और मेरे टैक्स बेस के हिसाब से वो अभी भी 500 करोड़ पे होगा। तो रिमेनिंग जो 300 करोड़ है उस पे डिटेल की लायबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल असेट्स अराइजिंग इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। लेट्स सपोज गुडविल है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपन सबको पता है कि आई गैप के हिसाब से अकाउंट पर नहीं होती, लेकिन इंड एस इसको अलाउ कर देता है। जो भी अपने इंटेंजिबल असेट बिजनेस कॉम्बिनेशन पर आई होगी वो अपन को अकाउंट पर करनी पड़ेगी इंड एस की बैलेंस शीट में।
Next point is de-recognize all assets and liabilities which are not permitted by Ind AS. इसका एक example लेते हैं. Ind AS 1115, Ind AS 115 revenue from contract with customers has different thresholds for revenue recognition as compared to AS 9 under Indian GAAP, and hence an item that is considered and recognized as a trade receivable in Indian GAAP, it may not be recognized under Ind AS. Second, proposed dividend. Proposed dividend अपन सब जानते हैं, आई गैप के हिसाब से रिकॉग्नाइज हो जाता है. प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों को अपन अकाउंट फॉर करते हैं गैप के हिसाब से. लेकिन इंड एस क्या बोलता है, जब तक वो डिविडेंड आपकी एजीएम में डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक आप उसको अकाउंट पर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे अपना उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अगर आपने अकाउंट पर कर रखा है. नेक्स्ट इज reclassify all items in accordance with Ind AS. Let's take an example. Ind AS requires classification of assets given on operating lease. ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, अगर अपन गैप के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग लीज अपनी पीपीई में दिखती है, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो फाइनेंशियल लीज हो, दोनों अपन पीपीई में दिखाते हैं. लेकिन इस इंड एस के हिसाब से उसकी अलग ही हेड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो अलग से अकाउंट फॉर होती है. तो अगर अपन ने कोई भी ऐसी ऑपरेटिंग लीज को पीपीई में दिखा रखा है उसको अपन को अब हटा के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखाना पड़ेगा. सेकेंड इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दैट वुड अर्लियर बी क्लासिफाइड एज इक्विटी. गैप के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स दोनों ही इक्विटी में दिखता है. लेकिन अगर कोई भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है जिसको अपन को बाद में जाके रीपे करना है तो वो अपन इक्विटी से हटाकर लायबिलिटी में लाना पड़ता है उसको. नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद इंड एस. नाउ इंड एस हैज वेल डिफाइंड मेजरमेंट्स प्रिंसिपल for financial assets and liabilities, like certain investments are measured at fair value. अपन ने सबने कहीं ना कहीं देखा 109 में फेयर वैल्यू के हिसाब से अपन को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है. लेकिन गैप में क्या होता था, whereas the same are measured at lower of cost and fair value under Indian GAAP. वो कॉस्ट पे भी मेजर पूरा करते थे. लेकिन इंड एस बोलता है कि अपन को सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको फेयर वैल्यू सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं जो अपन ने पहले भी डिस्कस कर रहे थे, उसको वो फेयर वैल्यू का अकाउंट को करने को बोलता है. लेकिन गैप में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. नेक्स्ट इज स्टेप 4 इज फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो भी कंपनी इंड एस, तो बहुत सारी चीजें इंड एस के अंदर मान लीजिए कि कभी कोई ऐसी एसेट भी हो सकती है जो गैप में रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, कोई इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी हो सकती है, और इंड एस में दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड because of the Ind AS criteria. लायबिलिटी के केस में भी सेम हो सकता है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं है और गैप में रिकॉग्नाइज भी हो रही है. तो जब आप इंड एस में कन्वर्ज करते हो तो ना केवल आपको बैलेंस शीट के हेड देखने हैं, आपको उनके एग्रीमेंट्स स्टडी कुछ इस तरीके से भी करनी होती है कि कोई ऐसा आइटम जो कि रिकॉग्नाइज, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर कोई आइटम है तो वो तो आपको नजर ही आ जाएगा, है ना. जो रिकॉग्नाइज नहीं किया है वो कैसे नजर आएगा. प्रैक्टिकल अगर अपन बात करें तो कोई आइटम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो उसको हम कैसे देखेंगे, वो कैसे नजर आएगा. तो वो आपका क्लाइंट से इंटरेक्ट करके, क्लाइंट से बात करके, उनके जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको एग्जामिन करके देन वन कैन कम टू ए कंक्लूजन कि नहीं साहब ये वाली आपकी एसेट्स या ये वाली आपकी लायबिलिटीज जो गैप में तो नहीं है लेकिन इंड एस में हो सकती है. तो अगर ऐसी कोई एसेट और लायबिलिटीज है तो वो आपको एज ऑन द ट्रांजिशन डेट रिकॉग्नाइज करनी होती है. So now we'll discuss about the first Ind AS financial statements. इसमें क्या क्या किया होता है. तो the first Ind AS annual financial statement in which an entity adopts its Ind AS by an explicit and unreserved statement, इस पे अपन आएंगे, of compliance with Ind AS includes the statement listed above. Normal सारी financial statement का अपन दो स्टेटमेंट तो देखते ही देखते हैं, एक इज द बैलेंस शीट एंड दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. लेकिन जो भी एंटिटी इंड एस को फॉलो करती है उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेटवर्क या फिर टर्नओवर लिमिट जो अपने गैप में दे रखी है उसको कैश फ्लो बनाना ही बनाना पड़ेगा. और एक और स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ठीक है, अब अपन आते हैं, इसमें लिखा है द फर्स्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन व्हिच एन एंटिटी अडॉप्ट्स इंड एस बाय एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड. इसका क्या मतलब है एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड? मतलब सपोज आपके 20 इंड एस ऐसे हैं जो आप पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो जब भी इंड एस अप्लाई करेगी वो एंटिटी तो उसको 20 के 20 इंड एस अप्लाई करने पड़ेंगे. वो ये नहीं बोल सकती कि 2 पे मैनेजमेंट ना हमारा
एग्रीमेंट नहीं हो रहा तो हम 2 इंडेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे। नहीं, अगर आपको करने तो आप पूरे 20 के 20 करोगे और पूरे करोगे, आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उसमें कि आपने 2 पॉइंट छोड़ दिए, 3 पॉइंट छोड़ दिए, आपको पूरे इंडेस अप्लाई करने पड़ेंगे। इसका ये मतलब। फाइनल स्टेप इज द प्रेजेंटेशन, रिकंसिलिएशन एंड डिस्क्लोजर। अब इस इंडेक्स में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन दे रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से कोई एग्जेम्पशन नहीं दे रहे। सो दिस इंडेक्स डज नॉट प्रोवाइड एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन अदर इंडेक्स. Also, an entity shall explain how the transition from previous GAAP to index affected its reported balance sheet, financial performance, and cash flows. Third is, an entity shall explain how the transition from previous GAAP to index has affected its reported balance sheet, financial performance, and cash flow. ऊपर वाले point की तरह ही है. और next is, if an entity becomes aware of the errors by reconciliation, it should distinguish those errors और उसका जो करेक्शन उन्होंने करा है उसको वो डिस्टिंग्विश करते हुए चलेगी, जहाँ पे भी वो रिकंसिलिएशन देगी, डिस्क्लोजर देगी. Now we'll discuss about the mandatory exceptions under Ind AS 101. तो यहाँ पे 8 mandatory exceptions हैं. पहला है estimates, second one is the derecognition of financial assets and liabilities, third will be hedge accounting, fourth will be the non-controlling interest, fifth will be the classification and measurement of financial instruments, sixth will be impairment of financial assets, seventh embedded derivatives, lastly government loans. So let's start with estimates. So let's start with estimates. अब कोई ना एस्टिमेट्स हम सारी एंटिटीज में देखते हैं, कुछ ना कुछ कंपनी एस्टिमेट बना के चलती है, जैसे कोई डैमेज का लॉस हो रहा है या फिर कोई कोर्ट केस के रिगार्डिंग हमको लॉस होने वाला है तो उसका एक एस्टिमेट बना के प्रोविजन बना देती है या ये लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देती है. तो इसमें पहले अपन ये देख लेते हैं इंड एस में क्या लिखा हुआ है कि एंटिटी एस्टिमेट्स इन अकॉर्डेंस विद इंड एस एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंड एस shall be consistent with estimates made for the same date in accordance with previous GAAP after adjustment to reflect any difference in accounting policies unless there is objective evidence that those estimates were in error. Okay, इसको simplified way में चलते हैं. 2 केसेस हो सकते हैं, या तो कंपनी ने एस्टिमेट बना रखे हैं प्रीवियस गैप के हिसाब से या कंपनी ने एस्टिमेट नहीं बना रखे. अगर नहीं बना रखे, सिंपल है, जो भी एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन उसको एस्टिमेट बनाने की जरूरत है वो उन एस्टिमेट्स को बना ले. ओके, डेट ऑफ ट्रांजिशन पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके हिसाब से एस्टिमेट बनेंगे. अगर आप लेट्स सपोज 1 अप्रैल 2022 को खड़े और आपकी डेट ऑफ ट्रांजिशन तो 1 साल पहले की होगी, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो 1 अप्रैल 2022 को आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको कंसिडर करते हुए आपने एस्टिमेट बना दिया. नहीं, जो डेट ऑफ ट्रांजिशन पे आपके पास इंफॉर्मेशन है उसी को कंसिडर करते हुए आपको अपने एस्टिमेट बनाने पड़ेंगे इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. दूसरा केस ये हो सकता है कि एस्टिमेट्स गैप के हिसाब से बने हुए. अगर वो बने हुए तो आप उसमें पहले तो ये चेक करो कि उसमें कोई एरर तो नहीं है. अगर कोई भी एरर आपको आइडेंटिफाई होता है तो उस एरर को ठीक करो, क्योंकि वो अब तो आपको पता लग गया कि जो आपने एस्टिमेट बना रखा है वो गलत है. तो जो गलत है उसको आप सही करने के लिए नए इंडेक्स के हिसाब से एस्टिमेट बना लो. अगर वो उसमें कोई एरर नहीं है तो आप अब उसको देखो कि वो जो इंडेक्स के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स एस्टिमेट की वो उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, उसके साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है. अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो उसमें रिस्पेक्टिव जहाँ कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही वहाँ आप उसको सही करते हुए प्रीवियस एस्टिमेट्स को यूज कर दो. और अगर वो पहले से बने हुए भी हैं, कंसिस्टेंट भी है, तो आपको कोई कुछ नहीं करना, आपको वही प्रीवियस जितने भी एस्टिमेट बने हुए उसको आप कंटिन्यू कर लो अपने इंडेक्स की बैलेंस शीट. Next point is our derecognition of financial assets and liabilities. अब derecognition अपन ने पहले ही क्लासेस में पढ़ रखा है. तो इसमें क्या लिखा है कि आपको जो डीरिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट्स है 109 के हिसाब से वो आपको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करनी पड़ेगी रादर देन रेट्रोस्पेक्टिवली. जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं डीरिकॉग्निशन पूरा भी एक्सप्लेन कर रही. अभी एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कोई फर्स्ट टाइम अडॉप्टर है that derecognize a non-derivative financial asset, let's say investment है या कोई trade receivable है, उसको derecognize कर दिया in accordance with previous GAAP before the transition date. मतलब आपके transition date से पहले ही वो derecognize हो चुका है, तो आप उसको वापस recognize नहीं करवाओगे एंड डेज में ये बोलते हुए कि वो मेरी recognition criteria को meet कर रहा है. अगर वो पहले ही derecognize हो चुका है तो आप उसको derecognize ही रहने दोगे. आगे आप retrospective effect देके उसको ये नहीं बोल सकते कि वो recognition criteria meet out कर रहा है. ठीक है.
डी रिकॉग्निशन कैसे होता है? सिंपल अपन समझते हैं कि क्या उस एंटिटी ने कैश फ्लो जो उसके पास राइट टू रिसीव कैश फ्लो थे क्या वो एक्सपायर हो गए? अगर एक्सपायर हो गए तो बात ही खत्म हो गई, उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर उसके कैश फ्लो एक्सपायर नहीं हुए तो हैज द एंटिटी ट्रांसफर्ड इट्स राइट्स टू रिसीव द कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट? अगर नहीं है तो हैज द एंटिटी अज्यूम्ड एन ऑब्लिगेशन टू पे द कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट? अगर ऐसा नहीं है कि एंटिटी ने कोई ऑब्लिगेशन अज्यूम नहीं कर रखी तो उसको तो वो अभी भी आपकी एसेट मानी जाएगी, तो उसको कंटिन्यू करो रिकॉग्नाइज करते हुए। अगर ऐसा है कि ऑब्लिगेशन उसने ले लिए टू पे द कैश फ्लोज, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आओ कि हैज द एंटिटी ट्रांसफर्ड सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स? अगर उसने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया तो आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो। नहीं करा फिर आप ये देखो कि अगर नहीं करा तो क्या तो उसने रिटेन कर लिया, अगर रिटेन कर लिया तो फिर वही कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज दिया। अगर हाँ ऐसा है कि ये लास्ट वन इज नो, तो अगर नहीं करा तो उसने कंट्रोल रिटेन कर रखा है क्या? अगर नहीं कर रखा तो डी रिकॉग्नाइज कर दो उसको, लेकिन अगर कंट्रोल रिटेन कर रखा है तो उसको कंटिन्यू करो रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये अपना पूरा एक प्रोसेस दे रखा है इंडेक्स 109 में डी रिकॉग्निशन। इसमें कोई किसी को डाउट है? आगे बढ़े। हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग प्रीवियस इंडेक्स 109 की क्लास में अपन ने डिस्कस करा। मुझे कोई बता सकता है कितनी तरीके की हेज अकाउंटिंग होती है? क्या क्या नाम है उनका? करेक्ट। और कैश फ्लो हेज क्या था? कैश फ्लो हेज और फेयर वैल्यू हेज में डिफरेंस को बता पाएगा? किसमें वेरिएशन? हाँ, ये कैश फ्लो हेज होगा। और फेयर वैल्यू हेज तो जो बैलेंस शीट के आइटम्स में वेरिएशन होता है उसके लिए अपन फेयर वैल्यू हेज करते हैं। और एक नेट पोजीशन होता है जो कंसोलिडेशन के टाइम पे काम में आता है। तो इंडेस 101 में क्या दे रखा है कि एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंडेस एन एंटिटी शैल मेजर ऑल इट्स डेरिवेटिव्स एट फेयर वैल्यू और eliminate all deferred losses and gains arising on derivatives that were reported in accordance with previous GAAP as if they were assets or liabilities. कोई भी अगर deferred losses और gain आपने recognize कर रखे हैं previous GAAP के हिसाब से, तो आपको उसको अब हटाना पड़ेगा क्योंकि इंडेस ये अलाउ नहीं करता। अच्छा, an entity shall not reflect in its opening index balance sheet a hedging relationship of a type that does not qualify for hedge accounting in accordance with Index 109. ये क्राइटेरिया आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे देखना पड़ेगा कि वो हेज रिलेशनशिप जो कि आज तक चलते आ रहा है कि वो इंडेक्स 109 की रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एंटिटी हैज टू फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडेक्स 109 रिलेटेड टू हेज अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। अच्छा, ये पर्सपेक्टिवली क्यों है? क्योंकि अगर आप एक बात समझिए तो हेज अकाउंटिंग को अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अलाउ कर देंगे तो वो एंटिटी बेनिफिट के लिए उसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर देंगे। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो हमारी उड़ाती बिना मतलब बोले मुंडरा सा रहते हैं मेरे पे छुट्टी मांगने, जिसको कह रहा है कब लग तो अगर मैं इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अलाउ अगर इंडेक्स कर देता है तो एंटिटी अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज कर सकती है। क्योंकि जैसे कोई हेज अकाउंटिंग कोई हेज इंस्ट्रूमेंट है, उसकी अपन को आज से बाद में आने वाली वैल्यूज तो नहीं पता, लेकिन आज से पहले वाली वैल्यूज तो आप सबको पता ही थी। तो आप तो ये बोल सकते हो कि हाँ मैंने इस डेट पर लिया था क्योंकि आपको दिख रहा है कि सबसे कम वैल्यू या सबसे ज्यादा वैल्यू मेरी उस डेट पर थी। तो आप अपने बेनिफिट के लिए उसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करके अपने बैलेंस शीट के परफॉर्मेंस को अच्छी दिखा सकते हो। इसलिए इंडेक्स प्रोहिबिट कर देता है इसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और इसको अपन को प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट विल बी आर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कब अराइज होता है तो बता सकता है? कॉम्बिनेशन में जितना परसेंटेज डिवाइड किया उसके रेस्ट ऑफ द परसेंटेज। तो ये थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा अपने बिजनेस कॉम्बिनेशन से जो अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे क्लास में। इसमें क्या दे रखा है
A first-time adopter shall apply the following requirements of Ind AS 110 respectively from the date of transition to Ind AS. क्या क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है? अपनी पीएनएल प्लस ओसीआई का जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट या लॉस होगा will be attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interest, even if this results in non-controlling interest having a deficit balance. गैप के हिसाब से क्या होता था? गैप में अगर नॉन-कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाता है गैप में, अगर इसका कोई डेफिसिट बैलेंस आता है तो गैप अपन को इसको अकाउंट फॉर नहीं करने देता, वो नेगेटिव नहीं दिखाने देता, चाहे वो जीरो हो जाए वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये अज्यूम करते हैं कि उनकी लायबिलिटी वहीं तक सीमित है जहां तक उनका बैलेंस खड़ा हुआ है, उनको अपन उनके पर्सनल एसेट से कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोल सकते। लेकिन इंड एस ये अलाउ कर देता है कि अगर कोई डेफिसिट बैलेंस आ रहा है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का तो उसको आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। नेक्स्ट विल बी अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन द पेरेंट्स ओनरशिप। कोई चेंज हुआ अगर पेरेंट की ओनरशिप में, प्रोवाइडेड वो लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसकी अकाउंटिंग इंड एस 101 में भी करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग क्या तुम लोगों को आज क्लास में मन नहीं लग रहा है क्या? हिस्ट्री और आईयूसी कहाँ सुन रहे हो तो चलो। Accounting for a loss of control over a subsidiary and the related requirements of Ind AS 105, that is non-current assets held for sale and discontinued operation, that is classification of all assets and liabilities of that subsidiary as held for sale. ये तीन चीजें भी बोलता है कि Ind AS 101 में भी अप्लाई होगी। इसका बहुत बड़ा रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन का अपन वॉलंटरी इलेक्ट करते हैं कि उसको अपन को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, तो अपन को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की भी जो अकाउंटिंग होगी इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। अपन ये नहीं बोल सकते कि मैंडेटरी एक्सेप्शन में बोल रखा है कि प्रोस्पेक्टिव करनी है तो अपन प्रोस्पेक्टिवली करेंगे। इसका बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि 103 में क्या अकाउंटिंग को वॉलंटरी अडॉप्ट कर रहा है। अगर प्रोस्पेक्टिव कर रहा है तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी प्रोस्पेक्टिव ही होगा, लेकिन अगर वहाँ वो बोल देता है कि मैं रेट्रोस्पेक्टिव करूंगा तो यहाँ पर भी अपन को रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी पड़ेगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। So basically business combination की भी एक exemption है पैरा डी में। So that exemption says that आपके जितने भी business combination हुए हैं, suppose हम 1/4/2022 से first time adoption कर रहे हैं और पिछले 5 साल के अंदर कई सारे business combination हुए हैं and the company opt for कि सब जो 1/4/2019 के बाद में जितने भी बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन आपने बिजनेस को अक्वायर किया कहीं पे और वो उनको अकाउंट फॉर करते हैं एज पर इंड AS 103 व्हाइल अडॉप्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एज पर इंड AS। ठीक है, तो इसका ये कहना है कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की अकाउंटिंग है वो भी 1/4/2019 से होगी। तो ये, और अगर मान लीजिए कि वहां पे हमने पूरा एग्जाम्पशन ले लिया कि 1/4/2022 से ही हम बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग करेंगे, पहले के सारे बिजनेस कॉम्बिनेशंस इग्नोर कर देंगे, इट विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर एज पर इंड AS 103, देन दिस एक्सेप्शन विल बी अप्लाइड और वो एनसीआई को भी 1/4/2022 से ही प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करेंगे। Next is the classification and measurement of financial instrument. Financial instrument अपन सबको पता है, it contains principle for classification of a financial asset as at amortized cost, FVOCI and FVTPL. यहाँ पर मेरे को कोई बता सकता है कि 2 टेस्ट हुआ करते थे, उन 2 टेस्ट के नाम क्या है जिससे ये क्लासिफाई होता है कि ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे होगा, FVOCI पे होगा या FVTPL। ये आज आपका टेस्ट हो रहा है, पहले की 4-5 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासेस हुई ना उसका। क्योंकि आप एक चीज को समझिए, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड AS का स्टैंडर्ड जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक कि रिलेवेंट जो भी स्टैंडर्ड है, चाहे वो पीपी वाला स्टैंडर्ड हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैंडर्ड हो, चाहे वो लायबिलिटी से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड्स है, जब तक वो रिलेवेंट स्टैंडर्ड आपको नहीं पता है कि वहां क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन इंड AS पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज आप एग्जेम्पशंस और एक्सेप्शंस की बात तो जब ही करेंगे ना जब पहले वाला आपको पता हो कि पहले क्या किया है। तो ये सारे स्टैंडर्ड अपन जब खाना खा लेते हैं और उसके बाद में लास्ट में डेजर्ट आता है ना,
तो दिस स्टैंडर्ड इज लाइक अ डेजर्ट. आप सारा कुछ थाली खा लो, उसके बाद में लास्ट में ये गुलाब जामुन है which you have to eat. So this is how you need to actually understand this particular standard. उसके पहले अगर आप पहले दिन किसी को ये लग सकता है ना कि यार सबसे पहले कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ना है, तो एवरीबॉडी वुड अज्यूम कि हाँ ये सबसे पहला नंबर का स्टैंडर्ड इस 101 वाली सीरीज में तो ये पढ़ना शुरू कर देते. उसका मीनिंग नहीं है, दैट इज मीनिंगलेस. इफ यू स्टडी इंडेस 101 फर्स्ट, या फिर आप उसको रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड पढ़ लिए, तो रिलेवेंट पोर्शन ऑफ इंडेस 101 शुड बी रेड बाय यू. रिलेवेंट पोर्शन. तो एक छोटी सी समरी, बिजनेस मॉडल टेस्ट दैट इज और अपना एसपीपीआई टेस्ट. ये क्या होता था, बीएम टेस्ट में अपन क्या देखते थे कि अपन बेसिकली एंटिटी का इंटेंशन देखते थे. अगर उस एंटिटी का इंटेंशन होल्ड करने का है उस एसेट को या लायबिलिटी को, तो वो अमोर्टाइज कॉस्ट की तरफ जाता था. और जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से पूल करते हुए अपन फिर अकाउंटिंग उसकी करते थे. अगर किसी एंटिटी का इंटेंशन उसको होल्ड करने का है या फिर सेल करने का है, उसका प्योर इंटेंशन नहीं है होल्ड करने का, ना उसका प्योर इंटेंशन है सेल करने का, तो उसको अपन एफईओसीआई में लेके जाते थे. और अगर उसका सिर्फ सोल पर्पस है ट्रेड करने का, उसको उसने सेल करने के लिए हेड कर रखा है, तो उसको एफईटीपीएल में जाके ले जाते थे. एसपीपीआई टेस्ट क्या बोलता था कि जो भी मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स होंगे जो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे फिक्स करे, वो सिर्फ मेरे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से रिलेटेड होने चाहिए. अगर है तो उसको अमोर्टाइज करते थे, नहीं है तो फिर उसको एफईटीपीएल में लेके जाते थे. तो इसमें क्या लिखा है, इंडेस 109 कंटेन्स प्रिंसिपल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट, एसेट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एफईओसीआई और एफईटीपीएल. Such classification depends on assessment of features of the financial asset on the date of initial determination. ये assessment of features अपन को सबको पता है. अब इसमें 101 क्या exemption देता है, Index 101 provides an exception to this general principle by requiring that such assessment should be done on the date of transition to Index, ना कि initially जब वो asset recognize हुआ. ठीक है. अब अगर अपन अमोर्टाइज कॉस्ट की बात करें, अगर उसमें इम्प्रैक्टिकल हो रहा है कि अपन को उसको रेट्रोस्पेक्टिव अपन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उसकी जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं मिल पा रही, या कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो अपन को ग्रास नहीं हो पा रही, तो इसमें एक एक्सेप्शन दे रखी है कि जो डेट ऑफ ट्रांजिशन पे फेयर वैल्यू है उसी को आप ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट मान लो, या फिर न्यू कैरिंग कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी मान सकते हो उसकी फेयर वैल्यू. नेक्स्ट इज इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट. इम्पेयरमेंट का रिक्वायरमेंट तब आता है जब अपन लेमैन की उसमें बात करें तो अपनी जो कैरिंग अमाउंट है और जो रिकवरेबल अमाउंट है उसमें वेरिएशन आ जाता है, तो अपन को इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ता है. ये भी 109 के हिसाब से अपन ने डिस्कस कर रखा है पहले की क्लासेस में. इसमें क्या क्या इंडेक्स 101 बोलता है, ये 3 रिक्वायरमेंट्स की बात करता है कि at the date of transition entity shall use reasonable and supportable information that is available, ताकि उसमें एक क्रेडिट रिस्क की बात करी थी अपन ने वहाँ पे कि क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई लायबिलिटी है मेरी, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि क्रेडिट वर्दीनेस सप्लायर की कम है, तो मेरे को शायद पेमेंट ना मिले. असेट की बात करें तो पेमेंट ना मिले शायद अपन को, तो उसको अपन क्रेडिट रिस्क हाई बोलते थे. तो इसमें क्या बोल रखा है कि डेट ऑफ ट्रांजिशन पे एंटिटी शैल यूज रीजनेबल एंड सपोर्टेबल इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल विदाउट अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट. बिना कॉस्ट और एफर्ट डाले हुए अपन को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो कि उसकी इनिशियली जो क्रेडिट रिस्क था उसको रिकॉग्नाइज करने में मदद करे. सेकंड क्या बोलता है, एंटिटी नॉट टू अंडरटेक एन एग्जॉस्टिव सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एट द रेट ऑफ ट्रांजिशन. जो उसको पता करने की जरूरत है, एक तो मेरे को पता करने की जरूरत है क्रेडिट रिस्क जो इनिशियल बेसिस पे था, एक मेरे को पता करने की जरूरत है जो डेट ऑफ ट्रांजिशन पे क्रेडिट रिस्क खड़ा हुआ है, ताकि मैं डिटरमाइन कर पाऊँ कि मेरा क्रेडिट रिस्क बढ़ा है या नहीं बढ़ा. अगर बढ़ा है तो मेरे को इम्पेयरमेंट की रिक्वायरमेंट्स आएगी. थर्ड है मेरा इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज. अगर इन दोनों के बेसिस पे मैं पता लगा लेती हूँ कि मेरा क्रेडिट रिस्क इंक्रीज है या एक हाई लेवल पे खड़ा हुआ है, तो मैं रिकॉग्नाइज करूंगी एक लॉस अलाउंस में, एक लायबिलिटी या प्रोविजन बना दूंगी उस लॉस अलाउंस का, जो कि उसका फ्यूचर में जो भी मेरे को लॉस होने वाला है उसका मैं हर एक रिपोर्टिंग पीरियड पे लॉस रिकॉग्नाइज करते हुए चलूंगी और उसका एक प्रोविजन बनाते हुए चलूंगी, ताकि मेरा एकदम से इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द डेट ना आए.
जब मैं उसको डीरिकॉग्नाइज करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बेडेड डेरिवेटिव। एम्बेडेड डेरिवेटिव में दो चीजें होती है, एक तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता था और एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता था। इंडेस 109 क्या बोलता था कि अपन को इन दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट अकाउंटिंग होती थी वहाँ पे, जहाँ पे अपन एक जो एम्बेडेड डेरिवेटिव है इसको अपन अलग से फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे, और जो मेरा होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी मैं फेयर वैल्यू पे अकाउंट फॉर करती थी। So a first-time adopter shall assess whether an embedded derivative is required to be separated from the host contract and accounted for as a derivative on the basis of condition that existed at later on. दो dates के बाद वाली जो date है उसको assess करेगा वो, the date it became party to the contract, the date or the date when a reassessment is required by Indian Tax Officer. मतलब जहाँ पे कोई भी change हो रहा है उस contract में, जहाँ पे reassess करने की requirement आ जाती है Tax Officer से, वहां पे दोनों डेट में से जो भी लेटर वाली डेट होगी उस पर मेरे को असेस करना पड़ेगा कि मुझे उसको अलग करके स्प्लिट अकाउंटिंग करनी है या फिर मुझे एक साथ ही उसको दिखाना है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लोन। यहाँ पे बेसिकली वो गवर्नमेंट लोन की बात हो रही है जो कंसेशनल रेट्स पे अपन को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अ फर्स्ट टाइम अडॉप्टर शैल क्लासिफाई ऑल गवर्नमेंट लोन एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ऑल्सो ये जो भी इंडेस की रिक्वायरमेंट है ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी। Entity shall not recognize the corresponding benefit of government loan at below market interest rate as a government grant. ये क्या बोलता है? अगर अपन प्रीवियस गैप की बात करें तो गवर्नमेंट लोन चाहे वो मेरे को 2% पे मिला हो और सपोज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है 10%, तो अगर वो मेरे को 2% पे भी मिला है तो मेरे को गैप क्या बोलता है कि आप इसको एज अ लायबिलिटी की तरह अकाउंट फॉर करो। नॉर्मल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। इसमें अगर चाहे वो 2% में मिला हो, चाहे वो 0% में मिला हो, चाहे वो कितने परसेंट में मिला हो, मेरी लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। लेकिन क्योंकि वो मेरे को एक कंसेशनल रेट पे मिला है, तो उनको यहाँ पे सबको दिख रहा है कि वो 2% में मिला है, मार्केट रेट 10% चल रही है, तो मेरे को कहीं ना कहीं एज अ ग्रांट एज अ बेनिफिट मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इंडेस इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है और बोलता है कि जो भी आपकी फेयर वैल्यू है उस रेट पर और जो आपको गवर्नमेंट लोन मिला है उसका डिफरेंस आपको गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। उसकी इंडेस में रिक्वायरमेंट उसकी अकाउंटिंग वैसे ही है। तो इस इंडेस 101 में वो एक चीज बोलता है, एक तो आपको प्रोस्पेक्टिवली इसको अकाउंट फॉर करना है, दूसरी चीज आपको जो करेस्पॉन्डिंग बेनिफिट मिल रहा है अगर आप प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसको आप गवर्नमेंट ग्रांट नहीं ट्रीट करोगे। नॉर्मल इंडेस में जाओगे ना तो वहाँ वो यही बोलता है कि जो डिफरेंस है उसको आपको गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इसमें एक उसने एक्सेप्शन दे रखी है कि वो इस रिक्वायरमेंट जो 109 की है और इंडेस 20 की है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव भी अप्लाई कर सकता है। एक कंडीशन है आपके पास सारी इंफॉर्मेशन जैसे मार्केट रेट, इंटरेस्ट रेट, सारी इंफॉर्मेशन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के वक्त पे अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल है तो वो ऑप्ट कर सकता है कि वो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हुए उसका पोलिंग करते हुए उसको आगे ला सकता है। अगर नहीं है तो उसको आपको प्रोस्पेक्टिवली जैसा वो खड़ा है आई गैप में वैसे ही उसको आपको इंडेस में लाना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लोन ऑफ ₹60 लाख वाज obtained on March 31st, 2021 for setting up a business in a backward region with a condition to create certain defined targets for employment. ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देती रहती है ऐसे लोन। The loan does not carry any interest, zero interest में मिला था उसको, and is repayable in full at the end of 5 years. अब डिस्काउंट फैक्टर अपन 10% ले लेते हैं। Being the incremental borrowing rate, determine the amount of government loan and government grant to be recognized as per first in its first India's financial statement. अपन को ये अज्यूम करना है कि एंटिटी ने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ऑप्ट करा। तो मुझे इसका आंसर 2 मिनट में निकाल के दे सकता है। 60 लाख का लोन है, 5 साल में रीपे होना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है। आज की डेट में गवर्नमेंट ग्रांट कितना रिकॉर्ड होगा और गवर्नमेंट लोन कितना अपन रिकॉग्नाइज करेंगे इंडिया की बैलेंस शीट।
आगे बोलूंगे तेरे को सर निकाला तो है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो बता, तू कॉन्फिडेंट नहीं तो क्या हुआ? सर 37,25,527 यही है। ताला लगा दे इस पे। हाँ सर। So the entity chooses to exercise the option given in paragraph B11 of Ind-AS 101, that is, the entity chooses to apply the requirements of 109 financial instrument and Ind-AS 20. ये financial instrument मतलब ये as a liability मेरी account पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि state government ने उसको loan तो दिया था, लेकिन उसमें condition डाल दी थी कि आपको employment generate करनी है। अगर नहीं करी तो हो सकता है government वो loan वापस भी ले सकती है। तो ये मेरी एज ए लायबिलिटी ट्रीट होगी इंडेस में, ठीक है। इसलिए 109 लगेगा और इंडेस 20 में गवर्नमेंट ग्रांट्स की अकाउंटिंग दे रखी है, उसके डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट्स दे रखे हैं। अब क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर रहा था तो फाइनेंशियल लायबिलिटी पूल करते हुए 37,25,528 की आई और जो डिफरेंशियल अमाउंट बच गया वो मेरे गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट होगा। ये तभी होगा जब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करूंगी। अगर मैं प्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई करती तो जो मेरा लोन 60 लाख का खड़ा हुआ था वही मेरा लोन अब आगे जाके 60 लाख पे ही खड़ा रहेगा। दिस वाज द लास्ट मैंडेटरी एक्सेप्शन गवर्नमेंट लोन। नाउ फ्रॉम हियर आरुषि विल टेक ओवर। Now let us move towards the voluntary exemptions. There are many Indias in which voluntary exemptions is given. For example, business combination, share-based payments, insurance contracts, and the list goes on. So we'll discuss some of them here. अच्छा, ये एक चीज बताइए कि ये सब एग्जाम्पशंस एक्सेप्शंस देने की जरूरत क्या है? कुछ काफी टाइम पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा लग जाती है जितना आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली कैलकुलेट करके लाओगे उसकी वैल्यू। अभी जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 1975 में इनकॉर्पोरेट हुई है ना, और उनको बोले कि साहब आप इंडेस लगाइए, तो इंडेस की रिक्वायरमेंट तो ये है कि इट नीड टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दैट कंपनी। तो अभी हो जाओ शुरू और इंडेस लगाओ, उस कंपनी का क्या होगा, है ना? तो टू फैसिलिटेट द अडॉप्शन एंड ऑफ कोर्स टू सेव द कॉस्ट, क्योंकि आप पता चला इतना बाहर पीछे जाके और लगा रहे हो और उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं है, तो दैट इज व्हाई दे से दैट दीज आइटम्स आर देयर जहां हम आपको कुछ एग्जम्पशंस दे रहे हैं, वेयर by opting the exemptions you need not to apply the what has been actually mentioned in the recognition and measurement criteria in the Ind AS। तो वो आप यहाँ जो exemption दे रखे हैं उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। So with respect to business combination, Ind AS 101 allows an entity to elect not to apply Ind AS 103 retrospectively on all the business combinations that has occurred before the date of transition. But if any of the business combination has been restated, then the entity need to compulsorily apply Ind AS 103 on all the later business combinations. Let us understand this with the help of an example. For example, X Limited acquired A Limited, B Limited, and C Limited on the respective dates. A Limited was acquired on 1st April 2010, B Limited was acquired on 1st April 2011, C Limited was acquired on 1st April 2014, and the date of transition here was 1st April 2015. So if B Limited elects to apply Ind AS 103 on B Limited, if X Limited elects to apply 103 on B Limited, then he needs to compulsorily apply 103 on C Limited, but he may elect not to apply Ind AS 103 on A Limited. Now moving forward, recognition criteria. Now let us see if the asset was recognized in previous gap but it doesn't qualify for recognition in Ind AS, how will be the treatment goes. We will understand this with the help of 5 cases. In the first case, the asset or liability was not recognized in previous gap and nor does it qualifies for recognition in Ind AS. So the recognition question doesn't arise here. Moving on to the next case, अगर asset या liability recognize नहीं हुआ था previous gap में but it qualifies for recognition in Ind AS, और अगर ये intangible asset नहीं है तो we will recognize it in Ind AS and it will be routed through retained earnings. Moving on to next case,
If the asset or liability was not recognized in previous GAAP, but it qualifies for recognition in NDS and it is an intangible asset, then it shall be recognized and it shall be routed through goodwill. Then, if the asset or liability was recognized in previous GAAP and it doesn't qualify for recognition in NDS, then it shall not be recognized in NDS. And if it is an intangible asset, it will be routed through goodwill. If it is not the intangible asset, then it will be routed through retained earnings, which is case 5. In case 2, if the asset or liability was de-recognized in previous GAAP, then it shall not be recognized in NDS also. Moving forward, let us understand the measurement exemptions, which says that if asset or liability was not recognized in previous GAAP, but it shall be recognized in NDS, then it shall be measured at an amount at which the NDS would have required it to be measured. Also, if the asset or liability was recognized in previous GAAP, but NDS required its subsequent measurement at some other amount, which is different from the amount at which GAAP has measured it, then it shall be measured at such other amount and the difference will go to retained earnings. If Ind AS 103 has not been applied retrospectively, then the first time adopter shall preserve the same classification as it has done in previous GAAP, and it shall recognize asset and liability at date of transition to Ind AS, but with respect to financial asset and financial liabilities which were de-recognized in previous GAAP, mandatory exemption has been given and they need not apply Ind AS 103. Goodwill shall stand at the carrying amount with respect to previous GAAP और उसमें कुछ adjustments हमें करने पड़ते हैं. जैसे अगर कोई intangible asset है, उसकी वजह से वो increase हो सकती है और intangible asset अगर कोई goodwill में subsume हो गया था तो उसकी वजह से decrease हो सकती है. For example, कभी previous periods में business combination हुआ था and intangible asset was not recognized as per previous GAAPs, but it qualifies for recognition in Ind AS. तो जब हम उसे अभी Ind AS में रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमारी गुडविल कम हो जाएगी और हमारा इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम अगर कोई इंटेंजिबल एसेट जो है वो पहले रिकॉग्नाइज हो चुका था तो तब हमारी गुडविल कम दिख रही थी और अभी हम उसे डी रिकॉग्नाइज करके गुडविल बढ़ा देंगे. और अगर कोई इंडिकेटर्स नहीं है तब भी गुडविल में हमें इम्पेयरमेंट चेक करना पड़ता है. Goodwill under previous GAAP increased by intangible asset that doesn't qualify under Ind AS, decreased by intangible asset which are recognized under Ind AS, and further reduced by impairment loss gives us goodwill under Ind AS. Also, Ind AS 101 requires the entity to apply harmonious interpretation, which says that अगर parent restate कर रहा है अपने past business combination, but subsidiary is not restating its past business combination, then for the purpose of harmonious accounting treatment, subsidiary के भी business combination को restate करना पड़ेगा for the purpose of consolidation. Moving on, let us understand this with the help of two cases. Case 1. What if business combination was accounted but with different classification under previous GAAP? For example, X Limited acquired किया था Y Limited को 1st January 2013 को, and it accounted it as a subsidiary. But in Ind AS, it shall be accounted as an associate. तो इसमें कोई optional exemption नहीं given है, and हमें mandatorily retrospective application यहाँ पर लगाना पड़ेगा. ऐसा कभी हो सकता है कि आई गैप में वो अकाउंट फॉर हो रहा था और एज ए सब्सिडरी और इंड एस में एज एन एसोसिएट अकाउंट फॉर हो रहा है. इज इट पॉसिबल? आपके मन में सवाल क्यों नहीं आया? ये जो कह रहे हैं बस उसको सुन लो, एक्सेप्ट कर लो, ऐसा है? वहां जो कंट्रोल का डेफिनेशन है और यहाँ जो कंट्रोल का डेफिनेशन है वो डिफरेंट है ना. बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा. तो बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट आई गैप में कोई चीज कंट्रोल है, सब्सिडियरी कंपनी है, इंड एस में वही एसोसिएट है, और यहाँ कोई एसोसिएट है, वहां एसोसिएट है, यहाँ पे वो कंट्रोल भी हो सकता है. सो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स आपको एग्जामिन करना पड़ेगा जब भी इंड एस 101 अप्लाई करेंगे या जब भी फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस होगा, तो देन यू नीड टू एग्जामिन दिस कि जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं उसमें कंट्रोलिंग किस तरीके से है, whether there is control, whether there is significant influence, whether there is joint control, or whether there is a simple investment, simple financial asset.
तो डिपेंडिंग ऑन दैट यहाँ पे अकाउंटिंग अलग हो सकती है एज कंपेयर टू द अकाउंटिंग व्हिच हैज बीन डन इन द आई गैप. Moving on to the next case. What if past business combination was not accounted as business combination under the previous gaps? अगर कोई business combination account ही नहीं हुआ था previous gaps में, तो Ind AS 101 बोलता है कि subsidiary के financial statements बनाने पड़ेंगे as per Ind AS on date of transaction, और उन्हीं financial statement को use करके हम consolidation करेंगे. Previous gap means I gap. तो I gap में अभी क्या हो रहा है कोई gap, है कोई accounting standard under the I gap? जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन को डील करता है. There is simple AS 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस, और वो भी बहुत कंसाइज वे में उसको डील करता है. एंड दैट सेज कि इसकी अकाउंटिंग जो है वो इन नेचर ऑफ परचेज और इन नेचर ऑफ मर्जर होगी. तो वहां पे जो अकाउंटिंग दी हुई है और जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में अकाउंटिंग दी हुई है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट अकाउंटिंग. बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं. तो अभी जो अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस करेंगे, एंड नेचुरली देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस in the accounting for business combination if it is being done as per the Ind AS. So exemption is available with reference to the all transactions, all past transactions before the transition date, or which all past transactions before the transition date. Yes sir. Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम 31 मार्च 2022 को 22 के फाइनेंशियल्स, या सपोज 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स हम फर्स्ट टाइम एज पर इंड एस बना रहे हैं. तो जो 22-23 और 21-22 इस दौरान अगर कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन है, तो क्या वो भी, उनकी भी एग्जाम्पशन हम ले सकते हैं? All no? ये भी कंफ्यूज है क्या? Yes? No? No. क्योंकि ट्रांजिशन डेट के पहले वाले बिजनेस कॉम्बिनेशन की एग्जाम्पशंस आपको अवेलेबल है, उसके बाद वाले की एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है. वो तो मैंडेटरीली आपको एज पर. तो ये जितने भी एग्जाम्पशंस है ना, all these exemptions are up to the date of transition. जो मेरा वाला एग्जांपल है जिसमें मार्च 23 में एज पर इंड एस सबसे पहले बन रहे हैं, तो 21-22 के जो कंपैरेटिव फिगर्स हैं, they will be as per इंड एस only, है ना. और इसका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है कि जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स को दे रहे हो, स्टेक होल्डर्स के सामने जा रहे हैं, तो जितने कंपैरेटिव फिगर्स हैं वो आपको, वो they should be really comparable. Objective is this, that they should be really comparable. तो इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और मान लीजिए कि इंडिया का लॉ ये कहता है कि साहब कंपैरेटिव फिगर्स 1 साल के नहीं 2 साल के दे सकते हैं, या कभी कभी कोई कंपनीज जो है वो लिस्टिंग में जा रही है, लिस्टिंग में जाती है ना कंपनी, तो उस वक्त भी उनको अपने फाइनेंशियल्स मोर देन 2 इयर्स भी देने होते हैं, 3 इयर्स के भी देने होते हैं, 5 इयर्स के भी देने होते हैं, व्हाट एवर आर द लॉस. तो इन दैट केस फर्स्ट टाइम अडॉप्शन डेट क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन डेट क्या हो जाएगी, और पीछे चली जाएगी. अगर 3 साल के देना तो 1 साल और पीछे चली जाएगी. तो ये कई बार इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सर ट्रांजिशन डेट इस केस में क्या होगी, जहां पे आईपीओ आ रहा है कंपनी का और उसने 4 साल के प्रेजेंट किए हैं, और कंपनी रेगुलरली जो है वो मार्च 2 ही साल के कंपैरेटिव देते हैं.
So then you need to judge. Moving on, let us move on to Ind AS 102, that is share-based payments. As per Ind AS 101, for all the equity अच्छा, what instruments- is share-based payment? केवल ESOPs नहीं, थर्ड पार्टी को भी कोई पेमेंट हो रहा है, आप किसी से मशीनरी ले रहे हो और उसको कह रहे हो कि जाओ हमारे शेयर ले लो, तो दैट इज द थर्ड पार्टी, वो ESOPs नहीं है, उसको आप अपने शेयर्स दे रहे हो, है ना, और या फिर उन शेयर्स के प्राइस के बेसिस पे आप उसको कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, so that is also share based payments. For all the equity instruments that are vesting before the date of transition to Ind AS, the entities are encouraged, but they are not required to mandatorily apply Ind AS 102. But for all the instruments that are vesting after the date of transition to Ind AS, the entity need to mandatorily apply Ind AS 102. Now let us understand this with the help of a question. X Limited is a first-time adopter of Ind AS. The date of transition is April 1, 2011. It has given 200 stock options to its employees. Out of these, 75 have vested on November 30, 2010, and the remaining 125 will vest on November 30, 2011. What are the accounting treatments available to X Limited at the date of transition? Will anyone like to answer? 125, 102 के सबसे अकाउंट होंगे। Mandatory. हाँ, Ind AS 102। And 75? अभी कॉन्फिडेंस आ गया उसको, हैं? For 75 options, entities encouraged, but they are not required to apply. But for the remaining 125, the company is required to apply 102. Moving on, let us understand what Ind AS 116 says. As per Ind AS 101, the first-time adopter need to apply the transitional provision in determining whether the arrangement contain a lease or not on the basis of fact and circumstances existing on the date of transition. मतलब डेट ऑफ ट्रांजिशन पे जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड कर सकते हैं कि लीज है या नहीं. हमें इंसेप्शन ऑफ लीज के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस देखने की नीड नहीं है. Lessee being the first time adopter of Ind AS shall recognize lease liability and ROU asset. Lease liability हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट व्हिच शैल बी डिस्काउंटेड यूजिंग इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरोइंग एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन पे. और ROU asset shall be recognized at an amount that is equal to carrying amount as if Ind AS 116 have been applied since commencement date of lease. Also, it can be recorded at an amount that is equal to lease liability adjusted for prepaid or accrued lease payments. Lessee being the first time adopter also have the following options. It can apply a single rate of discounting to portfolio of lease, and if there is a lease of which lease term is within 12 months from the date of transition, then the entity may elect not to apply the above treatment and they may elect to apply Ind AS 116. Also, for the lease in which the underlying asset is of low value, the entity may apply it as per Ind AS 116. Moving on. Ind AS 21 effect of changes in foreign exchange rates. इसमें ये बोलता है कि अगर फंक्शनल करेंसी हमारी वही है जिस पे हमारे गैप पे हमने बुक्स प्रेजेंट करी थी, तो we need not mandatorily apply Ind AS 21 retrospectively. But if there is a change in functional currency by applying Ind AS, then retrospective treatment is not available. For example, under AS, company was registered in India and preparing its books in rupees. While on getting converted to Ind AS, company determines that its functional currency is not rupees. Then no exemption is available to the company and it need to mandatorily apply Ind AS 21. Moving on. इसको हम तीन पार्ट्स में समझेंगे. फर्स्ट, डीम्ड कॉस्ट एग्जेम्पशन. डीम्ड कॉस्ट एग्जेम्पशन ये बोलता है कि अगर फंक्शनल करेंसी में कोई चेंज नहीं है तो हम जो कैरिंग अमाउंट है गैप का उसको डीम्ड कॉस्ट मान के आगे हमारी अकाउंटिंग कर सकते हैं. FCTR बैलेंस ऑन DOT दैट इज डेट ऑफ ट्रांजिशन. ये बोलता है कि अगर डेट ऑफ ट्रांजिशन पे कोई भी बैलेंस है FCTR में दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, तो उसको हम रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देंगे. क्या हो गया? बंद कर दे कॉल. हाँ बिल्कुल. तो उस बैलेंस को हम रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देंगे और आफ्टर डेट ऑफ ट्रांजिशन Ind AS 21 shall be applied on FCTR balance as well. This is the most important one, long term monetary asset.
हमें AS11 में पैराग्राफ 46 ने ये बोला था कि जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज गेन और लॉस है उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसे P&L में रूट कर देंगे, या फिर अगर वो मॉनेटरी आइटम है और उससे हमने PP और इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया था तो उसे हम कॉस्ट ऑफ एसेट के थ्रू रूट करेंगे, और अगर उसे किसी भी और पर्पस के लिए लिया था मॉनेटरी आइटम को तो हम उसे FCMI TDA दैट इज फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे। अब अगर किसी भी एंटिटी ने ये दोनों ऑप्शन दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट से अगर उसे रूट किया था या FCMI TDA से रूट किया था तो वो एंटिटी उसको कंटिन्यू कर सकती है उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को, बट दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैन बी कंटिन्यूड ओनली फॉर द मॉनेटरी आइटम्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। अगर डेट ऑफ ट्रांजिशन के बाद कोई भी मॉनेटरी आइटम्स आते हैं तो उस पे इंड AS 21 मैंडेटरीली अप्लाई होगा। For example, XYZ Limited has foreign currency loan of $1,000 outstanding on date of transition taken for the purchase of PPE. Then he may elect to continue such accounting even post DOT till the loan क्या हुआ? exists. नींद आने लगी? फिर इस एग्जांपल में ये आपको कंसिस्टेंटली अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर 1.5-2 घंटे तक अपन कंसिस्टेंटली किसी को नहीं सुन सकते ना तो इसका मतलब अपना कंसंट्रेशन पावर वीक है ना? तो यू नीड टू बी अटेंटिव। इधर उधर तो वो भी देख सकता है, और अटेंटिव रहोगे तो सब समझ में आएगा। इसको कैसे समझ में आ रहा है? 5 मिनट में इसका कॉन्फिडेंस कम हो गया, या इसके नजदीक बैठने से ज्यादा आ रहा है। क्या पता कोई ऐसी दवा हो पास में बैठ दूर भी बैठ के आप सुन सकते हो, आपको समझ में आ सकता है। एंड दे हैव प्रिपेयर्ड वेल, ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। जिस तरीके का इनका प्रेजेंटेशन का लेवल है ना, और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एज ए मेंटोर मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे इनको और कुछ सपोर्ट करने की जरूरत होगी। मोटा मोटी ये सब कुछ ठीक ही बता रहे हैं, तो हमें इसका एडवांटेज लेना है। अपने को क्या है कि अपने को एक ये ज्ञान पता नहीं कहाँ से भरा हुआ है कि कोई सीनियर, बहुत सीनियर कोई टीचर ही बताएगा तभी समझ में आएगा। ये सबको भरा हुआ ना ज्ञान है, नहीं है ना? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात जितनी मैं समझाऊंगा ना उतनी ये समझाएंगे तब भी समझ में आ जाएगी, बल्कि ये समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे से तो आप फिर भी थोड़ा सा हेजिटेट कर जाओगे कि यार सर से क्या पूछे, इनको तो आप कभी भी पूछ सकते हो। सो यू विल अंडरस्टैंड इन ए बेटर मैनर, सो टेक दिस एडवांटेज। Let us understand this example. अगर XYZ लिमिटेड है, उसने फॉरेन करेंसी लोन ले रखा था $1,000 के लिए और उससे उसने PPE परचेज किया था, और उसने वो ऑप्शन लिया था जिससे उसने फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस को थ्रू द कॉस्ट ऑफ PPE रूट किया था। तो ही मे इलेक्ट टू कंटिन्यू सच अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टिल द लोन एग्जिस्ट। बट अगर कोई और लोन उसने उस सेम PPE के लिए आफ्टर डेट ऑफ ट्रांजिशन लिया है तो उसको वो इंड AS 21 से ही रूट करना, इंड AS 21 के अकॉर्डिंग ही अकाउंट करना पड़ेगा, वो उसमें एग्जेम्पशन नहीं ले सकता है। मूविंग ऑन, as per Ind AS 27, investment in subsidiaries, joint ventures and associates, it says that investment shall be measured at cost or as per Ind AS 109. But Ind AS 101 in such a case prescribes that investment can be measured at cost or deemed cost. When we talk about deemed cost, it can be fair value as on date of transition, or it can be previous gap carrying amount as on date of transition. Let us understand this also with the help of an example. A Limited acquired B Limited in a business combination transaction. A Limited agreed to pay certain contingent consideration to B Limited. Contingent consideration means which is not fixed at that moment. It is dependent on some factors. As part of its investment in its separate financial statements, A Limited did not recognize the said contingent consideration. A Limited considered the previous gap carrying amount of investment as its deemed cost on first time adoption. In that case, does the carrying amount of investment required to be adjusted for this transaction? No, Right? because it can be the fair value or the value in the capital. So it need not be adjusted for the
contingent consideration. Instead, the contingent consideration portion shall be routed through statement of P&L whenever it will be paid. Moving on. When we talk about compound financial instruments, you all must know what a compound financial instrument is. Can anyone explain? Yeah. So when we talk about compound financial instrument, if the liability component of such compound financial instrument is outstanding as on the date of transition, then the entity need to separate, then the entity need to distinguish between the equity and liability portion. But if the liability portion is already paid before the date of transition, then no such separation is required. Ind AS 115, revenue from contract with customers. First time adopter may apply any of the following practical experience when applying Ind AS 115. For completed contracts, entity may decide not to restate the contracts that begin and end within the same annual reporting period. मतलब अगर एक ही एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था और उसी में वो फिनिश हो गया तो उस पर हमें ये इंडेक्स लगाने की कोई नीड नहीं है. For completed contracts that have variable consideration, an entity may use the transaction price at the date the contract was completed rather than estimating variable consideration amounts in the comparative reporting period. वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वेरिएबल कंसिडरेशन होता है तो उसका प्राइस जो है वो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिसाइड होगा और उसमें हमें प्रीवियस पीरियड्स का कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. And for all the reporting periods presented before the beginning of first Ind AS reporting period, an entity need not disclose the amount of transaction price allocated to remaining performance obligations and an explanation of when the entity expects to recognize that amount as revenue. Moving on, non-current assets held for sale and discounted operations. First time adopter को non-current assets which are held for sale or discounted operation, lower of carrying value or lower or fair value less cost to sale पे record करना पड़ता है और ये accounting treatment Ind AS 105 में ही दे रखा है. And if there is any difference between the previous gap carrying amount and the amount it just calculated, then the difference shall be routed through retained earnings. Ind AS 101 says that property, plant and equipment can be measured at any of the following values. First, it can use fair value as the deemed cost of asset. Otherwise, it can use the revalued amount at or before the date of transition as the deemed cost of asset, provided the revaluation amount is comparable to fair value or the cost of depreciated asset. Otherwise, it can also use measurement basis as per respective here that all the measurement option available are on item by item basis, which means अगर एक entity के दो plants है, plant A and plant B, it can elect to measure plant A as per fair value and plant B as per carrying amount. Let us take an example. ABC Limited is covered under. If there are two plants, entity is recording two plants, then it can elect to measure plant A with the help of fair value and plant B with the carrying amount. Class of assets should be same. Sir, item by item. Item by item doesn't mean that. तो मतलब अगर प्लांट्स हैं और मशीनरी है तो उन पे अलग-अलग हो सकता है. Item by item का है नहीं. It has to be like deemed cost only. Okay, I must got confused. Let us take an example here. ABC Limited is covered under Ind AS and required to prepare its financial statements as per Ind AS. Date of transition is 1st April 2015. Company has chosen to apply previous GAAP as deemed cost exemption. Company has recorded capital spares in previous GAAP financial statements as inventory. How shall capital spares be accounted under Ind AS on the date of transition to Ind AS? So before answering this question, whatever we studied in property, plant and equipment exemption was regarding the measurement exemption. It was not saying anything about the recognition exemption. So here the question arises that capital spares shall be recognized or not. So capital spares will be recognized as PPE if it meets the definition of PPE. Moving forward, insurance contract. अगर कोई सा भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड एनुअल पीरियड बिगिन कर रहा है आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांजिशन तो उस पे Ind AS 104 मैंडेटरीली अप्लाई होगा.
Now let us move forward to the disclosure requirement. So the entity need to disclose how transition from previous GAAP to Ind AS affect entity's financial position, financial performance, and the cash flow. Also, they need to give a reconciliation of equity as on two dates: the date of transition and the date of latest period presented in entity's most recent annual financial statements in accordance with previous GAAP. इसका मतलब अगर डेट ऑफ ट्रांजिशन हमारा 1 अप्रैल 2020 है तो हमारा जो गैप अपने अप्लाई किया होगा उसका लास्ट डेट होगा 31 मार्च 2021. सो उन दोनों का रिकंसिलिएशन देना पड़ता है इक्विटी का. इसमें मैं सबको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देना चाहूंगी जहां पर मैं अभी ऑडिट कर रही हूँ एनबीएफसी की ऑडिट. तो वहां पर हम लोगों ने रिकंसिलिएशन बनाया था ऑफ इक्विटी एज एट 31 मार्च 21 एंड 1 अप्रैल 2020, क्योंकि वहां पर 21-22 पे हमने एफटीए फर्स्ट टाइम अडॉप्शन किया था. तो 1 अप्रैल 2020 वाज द ट्रांजिशन डेट. तो ऐसा रिकंसिलिएशन हमें बनाना पड़ता है. मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज तो उसका रिकंसिलिएशन में अलग से इम्पैक्ट देना पड़ता है, डिफरेंट फ्रॉम द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एज ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय ईशा. दिस इज अगेन द सेम थिंग दैट इक्विटी का एक रिकंसिलिएशन हमें देना पड़ता है प्रीवियस गैप से लेकर अभी इंड एस जब हम अप्लाई कर रहे हैं तब से तब तक का हमें रिकंसिलिएशन बनाना पड़ता है. ऑल्सो अ रिकंसिलिएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नीड टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द गैप टू द करेंट पोजिशन व्हेन वी आर अप्लाइंग इंड एस. कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी हम लोगों ने ऐसे रिकंसिलिएशन वहां पर दिया था. When we present the financial information statements, non-Ind AS comparative information is also provided, but it shall be properly identified, and the entity must label that previous gap information is not prepared in accordance with Ind AS, and also it shall disclose the main adjustments which need to be made to such carrying amounts to comply it with Ind AS. हम उसका क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे उसे, लेकिन वी कैन ऑब्वियसली डिस्क्राइब कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ेंगे, उसकी वजह से हम इंडेक्स पे आ जाएंगे. एडिशनल डिस्क्लोजर दैट इज अगर हमने फर्स्ट टाइम का कोई एग्जेम्पशन लिया था पीपी पे, इंटेंजिबल एसेट पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, तो हमें ये फैक्ट एज वेल एज द अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी until such PP, इंटेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी is depreciated, impaired or derecognized. Thank you. अभी हमने इंडिया 21 के बारे में बात करी. अब हम बात करेंगे इंडिया 21 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. हमने जब पहले फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी क्लास ली थी तो हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या होता है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स. अब सपोज करो हमने इसको ट्रांजैक्शन एंटर किया सेल परचेज का, जिसमें हमारी करेंसी दूसरी है, हमारे डॉलर्स या फिर और कोई करेंसी. अब ठीक है, हमें ये बताओगे कि उस फाइनेंशियल एसेट क्लासिफाई करना है फाइनेंशियल लायबिलिटी में, तो फिर भी हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, रीजन बीइंग करेंसी दूसरी है. इसीलिए अब उस केस में हम इंडेक्स 21 को रेफर करेंगे और इंडेक्स 21 हमें बताएगा कैसे उन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की हमें अकाउंटिंग करनी है. अभी कौन सा स्टैंडर्ड है टू डील विद दिस सब्जेक्ट? यस. इसलिए हम अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इंडेक्स 21 की तो वो है पहला फर्स्ट हाउ टू इंक्लूड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड फॉरेन ऑपरेशंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस मतलब कि और कोई इंडियन करेंसी के अलावा ट्रांजैक्शंस. और फॉरेन ऑपरेशंस क्या होता है वो भी हम आगे की स्लाइड से पता चलेगा. दूसरा व्हिच एक्सचेंज रेट्स टू यूज, मतलब स्पॉट एक्सचेंज रेट, एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट या फिर और कोई अदर रेट जो हम यूज देंगे ट्रांजैक्शंस के लिए, और उनका जो इफेक्ट आएगा चेंजेस का फॉरेन करेंसी का, उसको कैसे रिपोर्ट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वेदर की वो एफएसओ में जाएगा या फिर एफईटीपीएल. पर कुछ स्कोप एक्सक्लूजन्स है जो इंडिया 21 के प्रीव्यू से बाहर है. रीजन बीइंग उनके लिए उनके रेस्पेक्टिव इंडेक्स है जो उनको गवर्न करते हैं. फर्स्ट, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस that are within the scope of Index 109. Second, hedge accounting of foreign currency items, including net investment in foreign currency operations. And last, presentation in statement of cash flow of transactions in a foreign currency or for foreign operation. मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे वो आइटम दिखेंगे, क्योंकि उसके लिए रेस्पेक्टिव अपने पास इंडेक्स है कैश फ्लो का.
अब अकाउंटिंग से जाने से पहले कुछ इसके टर्म्स है जो अपन पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे की अकाउंटिंग में बात करेंगे तो बार बार उसमें टर्म्स यूज आएगी। फर्स्ट, फंक्शनल करेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फंक्शनल करेंसी को समझने का, क्योंकि पूरे इंडिया के अगर हम बात करेंगे तो फंक्शनल करेंसी ही बेसिस पे पता चलेगा कि हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किस करेंसी में करना है। जरूरी नहीं है कि मान लो कोई कंपनी इंडिया की है जो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है, फिर भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी डॉलर्स में या फिर रुपीस में या फिर और कोई अदर करेंसी में। फंक्शनल करेंसी मींस द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन व्हिच एन एंटिटी ऑपरेट्स। प्राइमरी इकोनॉमिक मतलब it would be normally with a word in which primarily it generate cash and expense cash, मतलब कि किस करेंसी में अपने एक्सपेंस इनकट करते हैं, दूसरा किस में हम सेल्स रियलाइज करते हैं, कौन सी करेंसी है। दूसरी है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मतलब इट इज अ करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी। थर्ड, प्रेजेंटेशन करेंसी, द करेंसी इन व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। अब भी जब हमने तीनों की बात करी तो हमें लग रहा है कि इसका यूज क्या है, पर आगे साइड हम देखेंगे तो पता चलेगा कि फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी में फर्क क्या होता है, या फिर फॉरेन करेंसी। अभी किसी कंपनी का 100% एक्सपोर्ट है ना, कंपनी ऑपरेट इंडिया में करती है, उसके सारे के सारे रियलाइजेशन जो है वो डॉलर्स में है। तो और खर्चे जो है वो सारे रुपये में है, तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी, क्या होगी भाई? प्राइमरी फैक्टर्स के लिए सेकेंडरी फैक्टर्स दे रखे हैं एनडीएस में, इस वजह से हमें पता चलेगा कि क्या फंक्शन करेंसी है। ऑपरेट कहाँ कर रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, रुपीज ही होने चाहिए क्योंकि सब चीज के सबसे रुपीज। तो जनरली जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है उसकी फंक्शनल करेंसी रुपी होगी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ का ज्यादा काम आ रहा है, बट उस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी दुबई में है और वो सारे सेल्स परचेज जो है वो उसके परचेजेस येन में हो रही है, सॉरी दिरहम में हो रही है, और एक्सपोर्ट वहां से कर रही है, वो 100% एक्सपोर्ट कहीं और कर रही है, वो डॉलर्स में हो रहे हैं। तो ऐसे केस में फंक्शनल करेंसी क्या होगी? ये तो बेसिकली विद इन ए ग्रुप अलग अलग सब्सिडियरी कंपनीज की अलग अलग फंक्शनल करेंसीज भी हो सकती है। तो अब आप सोचिए कि ये इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से एक बड़ा ग्रुप अगर कोई है और उसकी नंबर ऑफ सब्सिडियरीज अलग अलग कंट्रीज में है, तो ये स्टैंडर्ड कितना रिलेवेंट है टू डिटरमाइन द फंक्शनल करेंसी ऑफ ईच एंड एवरी सब्सिडियरी एज वेल एज दैट पेरेंट कंपनी। फॉरेन ऑपरेशंस हमने पहले बात करी थी कि हम किस में ट्रांजेक्शन करना है। फॉरेन ऑपरेशंस मींस अ सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और अ ब्रांच whose activities are based in a country other than a set of reporting entity। मतलब कि आपकी फॉरेन सब्सिडियरी हो गई जिसमें आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी तो इंडिया में पर फॉरेन सब्सिडियरी है, तो उस केस में ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे। एंड लास्ट, स्पॉट एक्सचेंज रेट, इट इज एक्सचेंज रेट फॉर द इमीडिएट डिलीवरी। मतलब कि मैंने अगर आज कोई सेल परचेज का ट्रांजेक्शन एंटर किया तो आज जो स्पॉट एक्सचेंज रेट होगी उसी को हम स्पॉट एक्सचेंज रेट कहेंगे। फंक्शनल करेंसी, पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस मानेंगे कि ये पूरे इंडेक्स के इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट, इनकम डिटरमाइनिंग द फंक्शन करेंसी कैन हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हमने फंक्शन करेंसी हम गलत इंटरप्रेट कर ली तो हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वही गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी फंक्शन करेंसी मान लो डॉलर्स में थी, हम बना रुपीस में दिए। सेकंड, इफ इट इज determined incorrectly, transactions in the correct financial currency will be recorded as if they were foreign currency transactions। And third, exchange difference will be recognized on transactions for which no foreign exchange difference should arise। मतलब मान लो रिपोर्टिंग एंटिटी फंक्शनल करेंसी डॉलर्स बन रही थी, हमने इंडियन एंटिटी मानते हुए रुपीस में ट्रांजेक्शन कर लिया, इनका फंक्शनल करेंसी वही मान ली। अब डॉलर को हम क्या मानेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, जबकि वो अपनी फंक्शनल करेंसी थी और हम उसका एक्सचेंज गेन लॉस रिकॉग्नाइज कर लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जिसका कि इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत बड़ा हो सकता है अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हाई हुए तो। अब फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करने के दो फैक्टर्स दे रखे हैं, प्राइमरी फैक्टर्स और सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर से पहले हम बात करें तो फर्स्ट फैक्टर है करेंसी गेट इन्फ्लुएंस सेल्स प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो कि कोई एंटिटी है जिसकी मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती है डॉलर्स में होती है, 100% से 90% हम सेल्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं डॉलर्स में हो रही है, तो ऐसे केस में उस रिपोर्टिंग एंटिटी की फंक्शनल करेंसी डॉलर्स हो जाएगी, चाहे से वो इंडिया में इम्पोर्ट हुई फिर भी। सेकंड, करेंसी ऑफ कंट्री whose competitive forces and regulations affect currency policy। अब कोई ऐसी
रिपोर्टिंग एंटिटी है, उसकी सेल्स अगर बाहर हो रही है, उसके लॉज भी उसी कंट्री के लग रहे हैं, प्राइसिंग पॉलिसी भी उसी कंट्री की डिटरमाइन हो रही है, तो ऐसे कैसे फंक्शनल करेंसी उस कंट्री की हो जाएगी जो फॉरेन कंट्री में है। या फिर थर्ड, करेंसी डेट में मेन इंटरेस्ट लेबर कॉस्ट, मटेरियल अदर कॉस्ट, मतलब कोई कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई और उसकी सारी कॉस्ट, लेबर या फिर अदर कोई एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है वो अदर करेंसी में हो रहा है, तो ऐसे केस में वो जिस कॉस्ट इनको इनकर्ड हो रही है जिस करेंसी में, वही हमारी फंक्शनल करेंसी हो जाएगी। और अगर हमने देखा कि प्राइमरी फैक्टर्स हमने तीनों डिटरमाइन कर लिए, फिर भी हम डिटरमाइन कर पा रहे कि हमें फंक्शनल करेंसी क्या है, तो ऐसे केस में इंडियस हमें सेकंड फैक्टर्स और डिटरमाइन करने को देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि फंक्शनल करेंसी क्या रहेगी, जिसमें दो है। फर्स्ट, करेंसी इन विच फाइनेंस इज जनरेटेड, मतलब कि हमें किस करेंसी डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, और फिर भी हमें डिटरमाइन नहीं कर पाते कि हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है, तो ऐसे केस में हमारे जो सेल्स रिकॉग्नाइज हुई किस करेंसी में आफ्टर बिडिंग ऑल द एक्सपेंसेस इन विच आर सेल्स रिटेन्ड, तो ऐसे केस में वही हमारी फंक्शनल करेंसी हो जाएगी। पर हमें प्रायोरिटी पहले प्राइमरी फैक्टर्स को देनी है, ऐसा नहीं कि पहले सेकंड फैक्टर्स पे आए उसको इजीली डिटरमाइन किया और फंक्शनल करेंसी को डिटरमाइन कर ली। प्राइमरी फैक्टर्स को इंडिपेंडेंस देनी है, उसके बाद हम सेकंड फैक्टर्स पे आएंगे। और अगर हम जैसे बात करें कि फॉरेन ऑपरेशन हमारी, हमने जब बात करी तो थी मालूम थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन थे, मतलब कि एंटिटी जिससे हमारा रिलेशनशिप नहीं था, सेल परचेज का ट्रांजेक्शन था। बट हम बात करें कि मेरी कोई फॉरेन ऑपरेशन जैसे टाटा की कोई फॉरेन ऑपरेशन जैगुआर लैंड रोवर जो यूके में है, तो ऐसे केस में जैगुआर लैंड रोवर क्या फंक्शनल करेंसी होगी, उसके लिए कुछ एडिशनल फैक्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट है डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, अगर हमारी एक्टिविटीज जो फॉरेन ऑपरेशन है वो हमारी रिपोर्टिंग एक्टिविटी का एक्सटेंशन है, जैसे कि मान लो मैंने कोई सेल्स करी, फॉरेन ऑपरेशन मेरे से परचेज करती है, कैश जनरेट करती है और वापस मुझे पूरा कैश रेमिट कर देती है, तो ऐसे कैसे फॉरेन ऑपरेशन मेरी डिपेंडेंट है रिपोर्टिंग एंटिटी पे, तो जो मेरी एंटिटी की फंक्शन करेंसी है वही फॉरेन ऑपरेशन के लिए वो जाएगी फंक्शन करेंसी हो जाएगी। सेकंड, परसेंटेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस विद रिपोर्टिंग एंटिटी, if the transactions with the reporting entity are a high proportion of its activities, then the currency of reporting entity would be the functional currency। जैसे अभी मैंने बात करी कि मेरे सारे सेल परचेज ट्रांजैक्शन उस फॉरेन ऑपरेशन से हो रहा है, तो फॉरेन ऑपरेशन में जो फंक्शन करेंसी होगी वो होगी रिपोर्टिंग एंटिटी वाली। थर्ड, इफेक्ट ऑफ कैश फ्लोज, if the cash flows of the foreign operation directly affect the cash flows of the reporting entity, then the currency of the reporting entity would be the functional currency of foreign operation। मतलब कि अगर मेरे को कैश फ्लोज है और जो फॉरेन ऑपरेशन कैश फ्लोज है वो डिपेंडेंट है मेरी रिपोर्टिंग एंटिटी कैश फ्लोज पे ही, तो फंक्शनल करेंसी जो रिपोर्टिंग एंटिटी की होगी वही फॉरेन ऑपरेशन की हो जाएगी। एग्जांपल ये जैसे फ्यूचर सेल्स एंड एनर्जी ड्रिंक दैट इज सोल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, सेल्स ऑफ द एनर्जी दैट कंप्राइज 90% of the revenue of Future Limited। For convenience in pricing, sales of the energy drink are denominated in US dollars. All the financing activities of Future Limited are in its local currency yen. Almost all the costs incurred by Future Limited also denominated in yen. Then in case what is functional currency of Future Limited? No? Isn't? लोकल करेंसी और वो सारे एक्सपेंसेस इधर इनकर उसको कर रहा है येन में, तो इसलिए अगर हम इसमें जैसे देखिए पहले कुछ कहा जाता है डॉलर लिया था, क्यों? आपने सिर्फ देखा कि सेल्स जो हो रही है यूएस डॉलर्स में हो रही है, प्राइमरी फैक्टर हमने डॉलर देखा था सेल्स प्राइसिंग वाला, दूसरा देखा था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का और एक कॉस्ट का। तो कॉस्ट फैक्टर प्राइमरी क्या हुआ, कॉस्ट सेल्स हम डिटरमाइन कर पा रहे क्या होगा, हम सेकंड फैक्टर्स का है फाइनेंसिंग किसमें हो रही है येन में, इसलिए इसकी कंजम्पशन करेंसी भी येन ही होगी। क्योंकि अगर आप देखो ना इट सेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो अब वो ब्राजील भी भेज रहा है, जापान में भी भेज रहा है, यूएस में भी, सब जगह भेज रहे हैं वो, तो बिकॉज ऑफ सेल्स यू आर नॉट एबल टू determine the functional currency. For convenience, the pricing is in USD. Convenience purpose से वो USD में कर रहा है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप बाकी के जो फैक्टर्स हैं उस पर शिफ्ट हो जाओ और वहां देखो क्या पॉसिबिलिटी है। अब अकाउंट से पहले कुछ छोटा कॉन्सेप्ट हो रहा है मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स का, ये हम सबने A7 पर रखा है, तो कौन सा आएगा, क्या होता है एग्जांपल से हमारे क्लास में कुछ किसके बारे में कौन पाएगा? किसी बता दो, इस्लाम पर क्या है इंटरनेट हाँ बता भाई, कॉन्फिडेंट नहीं है? तुम खुद ही बता दो।
आता ही नहीं है। बता भाई। Monetary items मतलब units of currency held and assets liabilities to be received or paid in fixed determined number of units of currency. Example, मैंने किसी डेट को सेल करा $100 में, अब मुझे फिक्स अमाउंट पता है कि मुझे मिलना 5 महीने, मैं कैपिटल दे दूं 5 महीने बाद तो मुझे $100 से मिल रहा है, तो ऐसे केस में आइटम होगा मॉनेटरी आइटम। तो वही अब बात करें नॉन मॉनेटरी आइटम्स की, एब्सेंस ऑफ डेट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अ फिक्स्ड और डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ करेंसी, मतलब कि हमारा टेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही है कैरिंग वैल्यू, और हम आज उनको बेचना चाहेंगे, जरूरी है कि अमाउंट उतना हमको नहीं मिलेगा, उसका उससे ज्यादा भी मिले या उससे कम मिले, तो ऐसे केस में नॉर्मली टेंजिबल आइटम्स, इंटेंजिबल्स, गुडविल, ये सब नॉन मॉनेटरी आइटम्स में आते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ले हम ये सब तो एस 11 में ही लिखे हुए हैं। आप अभी क्या है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं इंडेज पढ़ रहा हूँ, है ना? तो क्योंकि मैंने इंडेज तो पढ़ा हुआ नहीं है, तो मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम तो इंडेज में है, so therefore you are not applying your mind। ये सब में आप अकाउंटेंसी के अंदर, मुझे नहीं लगता आपका किसी, आप में से किसी का लेस देन 60 मार्क्स आए होंगे, है ना? तो ये वही वाले अकाउंटेंसी है जो अपन ने एस 11 में पढ़ी थी। मॉनेटरी आइटम आपने क्या है कि अपने आप को ब्लॉक कर दिया कि इंडेज में तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या है, यही हुआ ना? तो ये तो पढ़ा हुआ है मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम, इसमें भी अगर आप ये कह रहे हो कि साहब हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब आपने वो रट्टाफिकेशन से पास किया होगा फिर, है? ये कैसे आप बोल सकते हो? तो प्रॉब्लम कहाँ है? या तो वो आपने उस वक्त जो किया ना, वो केवल एग्जाम पास करने के चक्कर में आपने उस वक्त पढ़ लिया। तो अभी यहाँ पे जो आपको पढ़ाई करनी है वो एग्जाम पास करने के हिसाब से नहीं चलेगी फाइनल में। यहाँ पे ट्रिक्स नहीं चलेगी। यहाँ तो आपको प्रैक्टिकली मॉनेटरी आइटम नाम आते ही आपको बैलेंस शीट के 4-5 आइटम लिखने चाहिए। ड्रीम में दिखते हैं ना वैसे कि हाँ बैलेंस शीट में एसेट में डेटर का क्लासिफाई करते हैं, डेटर को क्या मॉनेटरी आइटम बोलेंगे, क्या इन्वेंट्री क्या मॉनेटरी आइटम बोलेंगे, क्या इस तरीके से आपका माइंड चलना चाहिए। मॉनेटरी आइटम पूछा तो ऐसे माइंड चला क्या आपका? क्या नहीं चला ना? यू आर लेकिंग। जो ही कोई शब्द बोल रहे हैं उसका दिमाग में वो कल्पना होनी चाहिए, इमेजिनेशन आनी चाहिए कि यार ये क्या बोल रहे हैं, मॉनेटरी बोल रहे हैं, अपन तो फाइनेंस के हैं तो बैलेंस शीट ही दिखेगी सबसे पहले। तो वहां आप पहुंच जाओ क्या मॉनेटरी में इस लाइन आइटम में ये लाइन आइटम मॉनेटरी है, ये लाइन आइटम मॉनेटरी नहीं है। इस तरीके से ट्रैक होना चाहिए आपका माइंड। यू शुड ट्रैक द बैलेंस शीट इन दिस वे। moment there is some terminology in the financial statement in these accounting standards or wherever, जो भी relevant subject है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है that means our minds are not yet active। कितने लोगों का होता है ऐसा? एक के भी नहीं होता। तो that means minds are not active। कोई बात बोलते ही उसके रिलेटेड अगर 2-4 चीजें सामने नहीं आ रही तो माइंड एक्टिव नहीं है। So, और माइंड एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा? फोकस रहना पड़ेगा, आपको इमेजिनेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद सोचने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। है वो आपके पास टाइम है क्या? है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां है, आपको खुद सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। एक तरीका है जो तुम कोई मानोगे नहीं, सुबह जल्दी उठो। ये एक तरीका है। अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो तो आपको कम से कम पूरे दिन के 2 घंटे ज्यादा मिलेंगे, कम से कम। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि 2 घंटे जो ज्यादा मिलते हैं उस वक्त सबसे पहले तो आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, सो यू आर ऑल अलोन।
और उस वक्त आप ये चीजें प्रैक्टिस करो, कीप योर माइंड एक्टिव दैट टाइम। बिलीव मी, मतलब आप जितना जल्दी शुरू करो, हम लोगों ने लेट शुरू किया तो हमारा थोड़ा लेट एक्टिव हुआ, आप जितना जल्दी शुरू करोगे, एक्चुअली क्या आपके माइंड को रेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल रेस्ट नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह आपको वो ट्यूशन करनी है, उसके बाद में ऑफिस में यहाँ पे दीपक, गौरव, ये सब लोग हैं, इनको रिपोर्ट करना है। तो शाम का पता नहीं कब जाओगे। अभी तो थोड़ा ऑफ सीजन चल रहा है तो ठीक है, तुम 5, 5:30 निकल जाते हो, अदरवाइज देयर इज नो टाइम। इनको पूछो, आप ये 7, 8 बजे तक यहीं रहती है। तो द पॉइंट इज, आपको वो माइंड को रेस्ट तो मिला ही नहीं ना, माइंड तो एक्टिव है। वो माइंड कौन चला रहा है? आप नहीं चला रहे हो, कोई दूसरा ड्राइव कर रहा है माइंड को। तो अगर कोई दूसरा ड्राइव कर रहा है तो आपको उसको रेस्ट देने का टाइम नहीं मिला और आप ये चीजें सोच नहीं पा रहे। तो एक ही तरीका बचता है, ये सब तो कुछ हो नहीं सकता है ना, कि आप 10 दिन तक कह दो कि साहब हम तो ऑफिस नहीं आएंगे। पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये आप अपनी चीजों, अपने हैबिट्स में इनकैलकुलेट करो। वो किसके पास गई पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स? सीनियर्स के पास। तो तेरे पास भी एक कोई किताब आई थी? है? अच्छा, तूने पढ़ ली? चलो, ये 10 मिनट अपने को ज्ञान देंगे, बाद में देखिए अपन क्लास हो जाती है। अभी कंटिन्यू करो, नहीं तो अभी मेरा खत्म नहीं होगा। एग्जांपल देखिए मोटे आइटम्स के, पेंशन, अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजंस रिटर्न टू बी इन कैश, दीस लायबिलिटीज, कैश डिविडेंड्स। अभी ज्ञान बात करते हैं। और अगर नॉन मॉनिटरी आइटम्स की बात करें तो गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंटरीज, पीपी, इनकम फिक्स नहीं है जो हमारी बुक्स में आ रही है। इसलिए अब हम अकाउंटिंग की तरफ बात करते हैं कि फर्स्ट हम उस रिकॉर्ड करना है। इनिशियली कंडीशन में कौन से आइटम्स की हम बात करें, जो है बाय जो सेल गुड्स सर्विसेज हुज प्राइस इज लिमिटेड इन फॉरेन करेंसी, या फिर हमने कोई फंड्स बोरो करे जिसका अमाउंट फॉरेन करेंसी में, या फिर हमने कोई एसेट एक्वायर करा, डिस्पोज ऑफ करा या लाइबिलिटी सेटल करी, उसके समय इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे। तो इनिशियली का कंडीशन में चाहे वो आइटम मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी, दोनों ही केस में वो स्पॉट एक्सचेंज रेट पे ही अकाउंट फॉर होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसमें हमें ये नहीं देखना कि वो आइटम मॉनिटरी था या नॉन मॉनिटरी। बट हाँ, अगर हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करें तो पहले तो ये बात है कि सब्सिक्वेंट करना क्यों है। अगर मैं अपने फाइनेंशियल बना रहा हूँ, रुपीज बनाता हूँ, तो उसमें हम नहीं करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो इंटरेस्ट में क्यों कर रहे हैं, रीजन तो बताएगा। कि अगर मैं मान लो अगर रुपीज बनाता तो हम नहीं करते ना, हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस इनकम का, उसको चलते देते हैं, या तो उसको पे करेंगे या लाइबिलिटी रह जाएगी। पर इंटरेस्ट में हम उसको वापस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है। ये तो जी अपने एसएम भी देखी थी, उसमें हम क्लोजिंग रेट या एक्सचेंज रेट निकालते थे, तो रीजन क्या है इसका, क्यों कर रहे हैं। रिपोर्टिंग डेट पे एक्सचेंज रेट डिफरेंट होगी, वो तो है, तो क्यों कर उसका गेन और लॉस उसी पीरियड में हो जाना चाहिए, उसके दूसरे पीरियड में नहीं। हाँ, जैसे हमारी बैलेंस शीट हम बनाते हैं एसेट प्रैक्टिस में, हमने अपने डेटर्स को मान लो सेल्स की थी जनवरी में विद 5 months credit ऑफ अमाउंट रुपीस $100, उस समय एक्सचेंज रेट की थी मान लो 60 थी और आज वो 62 रुपीस। तो 31 मार्च को हमारे डेटर्स हम दिखा रहे फंक्शनल करेंसी में, वो एक वैल्यू दिखानी चाहिए उस दिन वैल्यू रही 31 मार्च की, ना कि जब हमने ट्रांजैक्शन एंकर करा था। इसलिए हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करते हैं। और इसलिए हम देखें तो मॉनिटरी आइटम के केस में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा क्लोजिंग रेट पे, उसमें हम ये कोई रेट यूज नहीं लेंगे। बट हाँ, अगर हम नॉन मॉनिटरी की बात करें तो उसमें दो केस है, या तो कोई वो नॉन मॉनिटरी आइटम हिस्टोरिक कॉस्ट मेजर होगा या फिर फेयर वैल्यू में। फॉर एग्जांपल पीपी मेजर करने के दो तरीके हैं, कॉस्ट मॉडल या फिर इवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में हिस्टोरिक कॉस्ट, ऐसे केस हमको ट्रांजिशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो जिस दिन हमने रिकॉर्ड किया था उस दिन की वैल्यू चल देंगे। और अगर वो फेयर वैल्यू रहा तो फेयर वैल्यू जिस हम डिटरमाइन कर रहे हैं उस दिन की डेट से हम डिटरमाइन करेंगे। और मैनेजमेंट की पता है कि वो रिवैल्यूएशन कब कर रहा है, कौन सी वैल्यू कर रहा है, हाफ ईयरली, ईयरली या फिर सेमेनली, उस पर देखेंगे। बट हाँ, अगर नॉन मॉनिटरी है हिस्टोरिक कॉस्ट पे तो वो ट्रांजिशन उसमें नहीं होगा, पर फेयर वैल्यू केस में जिस हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं उस दिन डेट से होगा। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस है जिसमें हम बात करेंगे कि इवैल्यूएशन कब करना है और कौन सा फंक्शन करेंसी में कब करना है, कौन सी डेट से करना है। जैसे मैंने बात करी पीपी की इवैल्यूएशन मॉडल, तो जिस दिन हमने इसको इवैल्यूएशन किया उस दिन की डेट से करेंगे।
बट हम इसे इन्वेंटरी में पढ़ते हैं दो कॉन्सेप्ट, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, या फिर इम्पेयरमेंट केस में। तो जिस दिन उसके हम एनआरवी निकाल रहे हैं उस दिन की जो एक्सचेंज रेट रहेगी उस दिन की रेट से ही हम इसको कंपेयर करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि कॉस्ट और एनआरवी कब है, ना कि फॉरेन करेंसी में। एग्जांपल जैसे कि कोई फॉरेन करेंसी का एसेट था यूरो 2 रुपीज का, जिस दिन हमने परचेज किया उस दिन एक्सचेंज रेट थी 52 रुपीज, तो हमने इसको रिकॉर्ड किया एट 104 lakhs, बट उसका रिकवरेबल अमाउंट अब रिकॉर्डिंग डेट पे रह गया यूरो 1,75,000 और उस दिन की एक्सचेंज रेट रही 60 रुपीज। तो अब उसको जब हम निकालेंगे वैल्यू कॉस्ट या रिकवरेबल अमाउंट की, तो यूरो भी दिख रही है और एक्सचेंज रेट भी दिख रही है। पहले हम फंक्शन करेंसी कन्वर्ट करेंगे उसको रिकवरेबल अमाउंट को, क्योंकि जब परचेज किया था वो तो रिकवरी पहले से इंक्लूडेड है एट 104 lakhs पे, और जब हम रिकवरेबल अमाउंट को निकाला फंक्शन करेंसी में तो वैल्यू 105 lakhs में। तो एक्चुअली में देखा है तो हमें कोई गेन और लॉस नहीं हुआ, बट वही अगर हम बात करते फॉरेन करेंसी में तो हमें 25,000 यूरोज का लॉस दिख रहा था, जो कि गलत है। इसलिए हमें पहले फंक्शनल करेंसी कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वो कॉस्ट एनआरवी कब आ रहा है। अब हमने देखा कि पहले इनिशियल कंडीशन में रेट दूसरी थी और सब्सिक्वेंट में जब रेट आए तो रेट चेंज हो गई। तो ऐसे केस में जो एक्सचेंज गेन और लॉस आ रहा है जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस की तरफ से मान सकते हैं, वो कहाँ जाएगा, एफईसीएम में या फिर एफईटीपीएल में। तो अगर मॉनेटरी आइटम्स का गेन और लॉस आ रहा है तो हमेशा ही वो पीएल अकाउंट जाएगा, मतलब कि एफईटीपीएल में। बट हाँ, अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स की बात करें तो डिपेंड करता है कि उस आइटम का अंडरलाइन गेन और लॉस कहाँ जाता था। अगर वो पीएलएल में जा रहा है तो वापस उसका गेन और लॉस पीएलएल में ही जाएगा, और अगर उस मॉनेटरी आइटम्स का गेन और लॉस ओसीआई में जा रहा था, एग्जांपल वैल्यूएशन मॉडल इन केस ऑफ पीपी, तो उसका गेन और लॉस फॉरेन एक्सचेंज का वो भी ओसीआई में ही जाएगा। अब से एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन मतलब क्या है, कोई एंटिटी का फॉरेन ऑपरेशन में अगर मैंने कोई लोन दिया तो वो मेरे नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन रिपोर्टिंग एंटिटी में नेट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन ऑपरेशन की तरफ माना जाएगा। पर इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेडेबल्स इंक्लूड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उनका अमाउंट में फिक्स होता है कि वो फोर्सिबल फ्यूचर में मैंने रिसीव हो जाएगा, इसलिए हम उनको नेट इन्वेस्टमेंट फॉरेन ऑपरेशन की बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटिटी हैज टू सब्सिडियरीज ए एंड बी, subsidiary B is a foreign operation, subsidiary A grants loan to subsidiary B, subsidiaries A loans receivable from subsidiary B would be part of the entity's net investment in subsidiary B। अगर मैंने कोई सेल परचेज ट्रांजैक्शन किया होता तो ऐसे केस में नॉर्मली ट्रेड पेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स भी होता है और उसका अमाउंट हमें कंफर्म होता है कि वो फोर्सिबल फ्यूचर में आने वाला है, तो नेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और अब नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे केस में जो गेन लॉस आएगा मॉनेटरी आइटम्स का वो डायरेक्ट नेट रिपोर्टिंग एंटिटी के पीएनएल में हिट होगा। अब हमने पहले बात करी थी फंक्शन कैसे डिटरमाइन करी, वन फैक्टर्स देखे, सेकंड फैक्टर्स में देखे और डिटरमाइन कर ली, पर अब फंक्शन कैसे चेंज हो गई। रीजन भी फैक्टर जो अंडरलाइन फैक्टर्स जो हमारे थे पहले के वही चेंज हो गए। मान लो कि मैंने सेल्स करता था पहले बाहर की पूरी, अब उससे बाहर के कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग गए हो और इस चक्कर में मैंने सारी सेल्स इंडिया में करने लग गया। तो अब ऐसे केस में मेरी जो सेल्स डॉलर मांग चली फंक्शन करेंसी वो चेंज हो गई रुपीज में, तो हमारी फंक्शन करेंसी चेंज हो सकती है। अगर once determined the function currency is not changed unless there is changes those underlying transitions like your primary factors या फिर subsidiary factors. If circumstances change and a change in function currency is appropriate, then the change is accounted for prospectively from the date of change, ना कि retrospectively। क्यों? क्योंकि accounting policy change नहीं है। For example, a change in the currency that mainly influences sales price of goods and services may lead to change in the entity's functional currency. Transition to the presentation currency. अब हम पहले बात करी थी इनिशियल कंडीशन के बारे में, फिर हमने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी किया और वापस हम आज बात कर ट्रांजिशन प्रेजेंटेशन करेंसी। इसके कंफ्यूज नहीं होना कि हम दो ड्यूज लेंगे। पहले हम जो कोई मान को एंटिटी ने थर्ड पार्टी से ट्रांजिशन किया था तो इनिशियल कंडीशन और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किया, पर अब मान लो कोई कंपनी है जिसकी फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी अलग है। जरूरी नहीं है कि फंक्शनल करेंसी प्रेजेंटेशन करेंसी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल टाटा, आज उसकी 100 कंपनी से ज्यादा है। अब कुछ कंपनीज है जो इंडिया में बिजनेस करती है जिनकी प्रेजेंटेशन करेंसी रुपीज है, कुछ फॉरेन ऑपरेशंस है जिनकी फंक्शनल करेंसी अलग हो सकती है और होगी क्योंकि उनको बाहर का बिजनेस चल रहा है सिर्फ वहां पर। तो ऐसे केस में हम जब कंसोलिडेशन करेंगे तो पेरेंट एंटिटी जो फंक्शनल करेंसी होगी उसी में करेंगे। तो उस दिन हम कौन से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट पीएल बैलेंस बने फॉरेन ऑपरेशन के, टीबी बना हुआ है। अब उसको हमें इंकॉर्पोरेट करना है हमारी पेरेंट एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो कौन सी रूटीज लेनी है। तो ऐसे केस में आइटम से जो पीएल रहेंगे इनकम और एक्सपेंसेस वो तो रेट ऑफ ट्रांजैक्शन पीरियड में देंगे। अब सपोज करो कोई एंड कंपनी फॉरेन ऑपरेशन की जिसके बहुत सारे लाइन आइटम है इनकम एक्सपेंसेस के, तो ऐसे केस में रेट ऑफ ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है डिटरमाइन करना हर एक के लिए। तो इंडिया समझ देता है कि एफिशिएंट आप यूज ले सकते हो। और अगर हम एसेट लायबिलिटी की बात करें तो वो डिटरमाइन होगी क्लोजिंग रेट पे।
अच्छा, इसमें हम वापस वो नहीं देखना मॉनेटरी आइटम है नॉन मॉनेटरी आइटम है, कोई भी आइटम बैलेंस शीट का एसेट लायबिलिटीज का वो डायरेक्टली हमें क्लोजिंग डेट पे होगा। अब कुछ तो हमने करे ट्रांजैक्शन रेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे या फिर एवरेज डेट से, और कुछ क्लोजिंग डेट से। ऐसे में बैलेंस शीट में डिफरेंस अमाउंट आ रहा है जिसको बैलेंस शीट फिगर कहेंगे, वो जाएगा एफसीटीआर अकाउंट मतलब कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व अकाउंट में। और ये जो रिजर्व अकाउंट है ये अभी तो ओसीएम में रहेगा, रिकास से अवेलेबल है। जैसे हम फॉरेन ऑपरेशन को हमारा लॉस कंट्रोल हो जाएगा या हम उसको बेच देंगे, वैसे वैसे इसका अमाउंट हम क्लासिफाई कर लेंगे वापस पीएलएल में। तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग का जो पार्ट था पूरा कंप्लीट होता है। पहले हमने इनिशियल इनकम करा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी करा, और फिर अगर हमारी फॉरेन ऑपरेशन रही थी या फिर हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी अलग थी तो ऐसे कैसे हमने उसके ट्रांजिशंस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट भी कर लिया। अब हम कुछ इंडेक्स 21 बात करते हैं डिस्क्लोजर्स की, जिसको हम देखते हैं। अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेप्ट फॉर दोस अराउंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेजर्ड एट एफईटीपीआर इन अकॉर्डेंस विद इंडेक्स 109। मतलब जो एक्सचेंज डिफरेंस इंडेक्स 109 की वजह से आ रहा है उससे हमें पीएल में अलग से दिखाना ही होगा, एक्सेप्ट जो 109 कौन कर रहा है, जैसे हेड अकाउंटिंग हमने देखी थी या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी गेन और लॉस को तो वो बताएंगे कि क्या बजट आएगा। सेकंड, अगर किसी कंपनी की प्रेजेंटेशन करेंसी और फंक्शनल करेंसी अलग है तो ऐसे केस में बताना पड़ेगा कि फंक्शनल करेंसी अलग की क्यों है और उसके रीजंस क्या है, और फिर बताना पड़ेगा कि फंक्शनल करेंसी क्या है हमारे से और प्रेजेंटेशन करेंसी क्या रहेगी। थर्ड, इन केस ऑफ चेंज फंक्शनल करेंसी तो हमें बताना होगा कि हमने फंक्शनल करेंसी चेंज क्यों करी, क्या फैक्टर्स थे जो पहले हमने डिटरमाइन करे थे और अब चेंज करने पड़े, डेट ऑफ चेंज और रीजन फॉर चेंज की हमने फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन क्यों करी। आई होप आप लोग को इसकी अकाउंटिंग जो है थी पूरी इंडेक्स 120 की समझ में आ गई होगी। इनिशियल हम पहले रिकॉग्नाइज करा, उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी करा, और फिर अगर फॉरेन ऑपरेशन रही थी तो हमने उसको वापस प्रेजेंटेशन करेंसी में अपने कन्वर्ट किया। थैंक यू।